Are you able to see my screen? And hear my voice? Acha, voice is fine. ठीक है, ठीक है. See, we have limited number of students, so what I can also do after some time, I can also help you. You can also ask individual doubts because I don't think we'll be having too many, let's say, participants यहाँ पे. ठीक है. दूसरी बात, आप में से whosoever has texted me their doubts, all of your doubts I have taken in the slides. ठीक है. Almost every slide will have something related to your doubts. ठीक है. Because the session is ask me anything. Okay, related to political science. So you have been stuck, let's say, in any portion of the syllabus. आप कहीं भी फंसे हुए हैं. Topic, thinker, anything which you do not understand in political science, okay, you can ask me here. ठीक है. Okay, Smriti, you wanted to ask, बताओ. Yes, sir. Good evening, sir. Good Sir, evening. मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मेरा ऑप्शनल है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है. मेरा ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस में हुआ है, लेकिन ये जो वेस्टर्न थ्योरी है, Right. थिंकर है, बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है. और अभी मैं 2024 में अटेम्प्ट देने वाली हूँ, ठीक है. लेकिन ऑप्शनल के सब्जेक्ट में थोड़ा दिक्कत हो रही है. कैसे मैं शुरू करूँ, ठीक है, कैसे ठीक है, खत्म ठीक है, ठीक है. I understand. So what I'll do initially, for some time I will speak. ठीक है. And most of these doubts मैंने आपके already लिख लिए आप लोग के. And after that I will take individually almost every doubt. ठीक है. Does that work? ठीक है सर, थैंक यू सर. हाँ. So अभी for the time being, I think everybody can let's say mute themselves. And after that वो क्योंकि because we have limited students, तो उसका एक फायदा ये भी है कि I can interact with you one on one as well, है ना? You have any doubts related to political science, you are more than free to ask me. Okay. यस सर, थैंक यू सर. I'll just wait for 1 or 2 more minutes of यस. anybody else who has, let's say, मैंने आप सबके doubts slides में cover करे हैं. मैंने what I have done, I have not revealed your identity, but इस तरह से जिसने भी डाउट्स पूछे मैंने सारे डाउट्स लिखे हैं यहाँ पे, है ना? सो इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव सेशन ऑफ सॉर्ट्स. तो उसमें आपको एक तरह से देयर इज, लेट्स से, नो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. जस्ट गिव मी 1 minute. Okay, I think around 42 people have joined in. That is pretty good. I was not expecting इतने लोग भी आएंगे. So I'm very happy that all of you have joined in. I think इस समय you have chosen not to watch the India-Pakistan match, although there's some rain there. Okay. So still, I'm very happy that on a Sunday, on a very short notice, all of you are willing to join this session. Okay, I think we've joined around 50 students have joined. That is pretty good to see. हाँ मनीष, मैच में बारिश हो रही है, कोई बात नहीं. राघवेंद्र, यस एब्सोल्युटली, सिलेक्शन के बाद बिल्कुल मैच एग्जाम में देखेंगे सब लोग साथ में, बहुत अच्छा लगेगा. ओके. सो सी, आई थिंक काफी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग नाउ. The session is titled Ask Me Anything, wherein briefly I'll talk about the basic things which you should keep in mind. Number one, I'm hoping that there is nobody who is writing the mains of this year उसने attend किया है, कोई ऐसा तो नहीं है. If somebody who is writing this year's mains, if you have any issues, you can directly contact me after the session, because but this session is basically for students. हाँ ठीक है, अच्छी बात है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स. अच्छा, बाकी लोग भी, आई थिंक आई नीड टू डिसेबल द एनोटेशन फॉर अदर पीपल. 1 सेकेंड. अदरवाइज वो एनोटेशन आप लोग के होते रहते हैं. चलो ठीक है, मैंने डिसेबल कर दिया है. ओके, फाइन. So we are going to start now. Okay, and I'll start this with few things. Number one, this was one of the doubts shared by one of your
लेट्स से कलीग्स, और उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीजें मुझसे एक ही सवाल में पूछ ली हैं. ओके, सो नंबर 1, हाउ टू डील विद आंसर राइटिंग, how to make short notes. Okay, a very good evening to all of you. We are just starting now. Okay, this will be a brief session, but then I want this session to be very interactive. इसीलिए whatever doubts you have sent me, I'll answer each and every one. ठीक है, अब देखो, how to deal with answer writing, I'm talking about that. How to make short notes and when. ठीक है, by the way, annotation सब दिख रहा है सबको? You're able to hear me and see the slides? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. Okay. How to deal with international relations. Okay, how to be aware of all international relations, how to link international events. Now for example G20 है या जो भी उसका इफेक्ट है ग्लोबली, एंड ये सारे डाउट्स आप ही एस्पिरेंट्स के हैं. ओके, एंड देन मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट. इनफैक्ट सब लोग यही चाहते हैं, राइट? ऑल ऑफ अस वांट दैट इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स, काम हमारा एक बुक से हो जाए, एंड वी आर एबल टू गेट the maximum marks, right? That is all that everybody wants, right? Okay, but before I start here, I'll also take 5 more minutes. Okay, because I also have few doubts of other people as well. Okay, अब कुछ लोगों ने बहुत स्पेसिफिक डाउट भी पूछा है मुझसे कि सर, हाँ, एक और सवाल यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाइए मेरे को. हाँ, अब बेटर है. Okay, somebody saying that their doubt is that whether the subject is too bulky, how to prepare it, from where to start, how much time, notes, lecture, etc. Fine. And before I start all of your doubts, I know many students here also are in a, let's say, dilemma to choose which optional. ठीक है, अब in this, because I teach political science, and in fact I also have an interest in political science, so पहली बात तो, I am not saying you should take political science as an optional number 1. Those who have already decided they're going to take it, okay, we can move forward. But still, I am going to present you in next 5 minutes. Those of you who are extremely confused about how to choose an optional, एक बहुत ही तरह से I'll try to be as unbiased as I can be, okay? In the sense, how should you choose an optional? Fine. So if you have to choose an optional, so I know there are 2 categories of students with me. One who are engineers, okay? One who are, let's say, broadly humanities students. Okay? If you are an engineer and you want to take an engineering optional, okay, so you are helped in both civil services, and that optional is also present in Indian Forest Services. Provided you have had a good background, आपने अगर गेट की, if you have prepared for GATE, अगर आपने गेट की तैयारी करी है, and by the way guys, I will be using both mix of English and Hindi because आप लोगों ने इन्हीं चीजों के बारे में एक तरह से मुझे बोला था, ठीक है? But I will be, how to choose an optional will only be 5 minutes. उसके बाद we will be basically talking about political science, ठीक है? Because that was the agenda of discussion. So if you are able to gauge this, excellent. Still, the entire session will help you understand how to deal about this optional in coming days. Fine. So engineering option, like let's say technical option like maths, physics, mechanical engineering, civil engineering, there are many optionals. तो वो उसके लिए अच्छा है if you are provided you are good with your theory, okay, and you are more or less certain you can get some objective marks, okay, which is also sometimes a downside of humanities, that sometimes marks can be subjective. This also I'll explain to you. Fine. However, there is a downside. Okay. There is also a downside that number 1, this requires more efforts. Okay. Second, there is no overlap with GS. ठीक है, तो आपको you have to put in more efforts in the engineering, all these optionals, and there is no overlap with GS. Which is why sometimes people are motivated to take a humanities optional. Fine. For example, we are discussing political science today. So you can think of political science, or you take sociology, or let's say somebody takes
a different optional, let's say anthropology, so on and so forth. Fine. My point in all of this is choose what excites you, choose what motivates you. Fine. Because essay you have to read, GS you have to read, but optional should be something that should not be optional, right? We are talking of 500 marks, and in this 500 marks, you can score as high as 300 plus, 315, 320. So choice of optional in that sense is very much important for all of you, right? तो उसके लिए इनफैक्ट आप में से some of you have also messaged me that I'm confused between PSIR and socio, PSIR anthro, PSIR something else. What should I do? Okay. Again, to give you an unbiased opinion, what should you do? आप write down the pros of your optional. Let's say PSIR के लिए pros लिखो. Write down the pros of other optional as well, and also the cons. Fine. Sometimes you may get confused between, let's say, PSIR, yes, psychology or sociology. So the point is, when you write the points down, when you see the syllabus, etc., it will give you a decent understanding as what should you do to approach this. Okay. And even then, let's say when you are even more confused, I don't know, I still don't know, then we can perhaps talk. And at the end, I'm going to tell you, it is going to be difficult choice. When I was also preparing, I am a mechanical engineer. I have a very good track record in mechanical engineering, but then I wanted to take English literature. I also wanted to take psychology. I wanted to take political science. So I had also a lot of doubts. Finally, I took political science and I got one of the highest marks all India. And also because of that, because of this, I also gave interviews both in my state, UPPCS. Also, I also gave interviews in UPSC. I gave multiple mains. So I had a good experience with political science, primarily because I loved the subject a lot. Okay. So again, I'm telling you, you should do this again as per your love. I can give you a lot of, let's say, insights on this as well. So agar you want to take socio also, you are more than welcome to do so. Jo bhi optional lo, but make sure you study it to the point you ultimately have to get very high marks. है ना? Other than that, merely romanticizing ki haan, I want to take this, I want to do that. After choosing the optional, you have to put in a lot of hard work. That goes without saying. Aapko hard work karna hi padega because you are competing. Again, one more thing. You might think political science excites you, but also remember in political science, sociology, anthro, the competition is also high, which means your efforts should not be very minimum. In fact, your efforts should be higher. आपके effort average से थोड़े ज्यादा ही होने चाहिए because everybody is competing for the same thing, right? So that is one of the things I wanted to at least bring to your notice. Okay. With that said, again, अभी यहाँ पे भी इस session में those of you who are still confused, who want to choose an optional, okay, can decide and think about it. I am more than open to discuss your choice of optional one-on-one as well. आप ये मेहनत करके लाइएगा pros and cons. Pol science आप क्यों लेना चाहते हैं? Why do you want to take political science? And why do you want to take sociology? And why don't you want to take it? Please write it down on a piece of paper. And then I can discuss this one-on-one with you as well. Those of you who are confused. Because I also know that choice of an optional in this exam is extremely, extremely important. And if you are permitted, let's say you're giving the exam in 2025, 2026, make that choice, keeping time in hand. All right. With that said, I am going to start with the main portion, which we have to discuss now. Okay. Which I think should also help. Somebody asked me, I'm from a commerce background. Should I take PSIR? The point is, you can be from engineering background, any background. Okay. If you are interested in the subject, for that, please see the syllabus. Please see the previous questions. Okay. You can take it. But then, yes, you have to write. Compete karna padega. Competition has some rules. Those rules I'll explain to you. Okay. Okay, this part on essay writing, etc., I'll take at the end if time permits. Otherwise, I'll also, let's say, discuss this separately, essay, because now I'm going to focus absolutely on pol science. All right.
मनीष, हम आपके डाउट को भी लेने वाले हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए लेट्स से आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ओके, अब देखो, इन दिस सेशन आई बेसिकली बी टॉकिंग अबाउट दीज few dimensions, starting with the syllabus. Second very important thing is how to understand topics. I also got doubts from some of you. किसी को पेपर 1A में थिंकर समझ नहीं आ रहे, somebody is not able to understand ideologies, somebody is not able to understand the current happenings, etc., etc. Okay, so I have got these doubts. I'll also help you understand this. मैं ये भी समझाऊंगा आपको ये कैसे आप कर सकते हो. Okay, second is how can you connect the topics. Okay, let's say you read about hegemony. How many of you have read hegemony in this class? जो पहले से, let's say you have a background or let's say you have understood. Kirti has read hegemony. Hegemony किसका concept है? Please write it down on the comment section. चलो, somebody wrote US. Okay, it's actually Gramsci. So we use it in both sense. As a thinker, the concept was given by Antonio Gramsci. In international affairs, we also say that US is the, or let's say even now, China is the hegemonic power. Fine. So again, what is its meaning? What is its implication, etc. So for that, you need to connect the topics and you need to understand well. Again, I'm saying those of you who are new to the subject, fine. Develop or let's say spend time understanding it. Don't be in a hurry. भागना कहीं नहीं है. जितना अच्छा बेस बना लोगे, the better your base is, the better it is going to be. Fine. Make sure you do that. And also I will help you in doing that. Decoding the previous questions. See, एक और चीज मैं आपसे कहूंगा. How many of you have seen the previous questions of your optional? जी, मैं ट्राई, मतलब I'll try, मैं दोनों लैंग्वेज में ट्राई करूंगा, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. देखो, जो बिगिनर है कोई भी है, प्लीज लेट्स से प्लीज बी पेशेंट, वॉच द एंटायर सेशन. Everybody was a beginner once, okay? But again, after this session, you will have some basic idea. Okay, देखो, point is, if you have, अगर आपने चूज कर लिया है कि हाँ, I am going to take political science as my optional, my sincere request to you will be, go through the previous year questions. A previous year questions can be analyzed in two ways. One is year wise. आपने 2022 का देखा, 21, and again you see the previous year papers. Second is theme wise. Okay, for example, I am saying a quotation. Please tell me whose quotation is it. Reality is a shadow of ideas. Is this the previous year question? ठीक है, I think many of you know this. Reality is a shadow of ideas, right? So point is, this has been asked in your previous years, right? Similarly, can you tell me any famous quotation or a line of Karl Marx which has been asked in the exam already? With this, I am again testing whether आप previous questions देखते हो कि नहीं देखते हो. See, है ना? Any statement of Karl Marx जो आपको याद आ रहा हो? Religion is opium of masses. Okay. Anything else? Have you read about historical materialism? History of the world is the history of class struggle. You might have heard about it, right? Alienation बिल्कुल सही है. Right? Theory of alienation आपने सुनी होगी. So the point is, you have to see the previous year questions. बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, है ना? Nitish, after I think few minutes, I'll also be speaking about people who have to prepare after, let's say 2024. So you can slightly be patient. सबके points I'm going to discuss, but again, because 2024 वाले सबसे ज्यादा close हैं, I want to make this
especially for them, right? Then there is a point of making notes and then there is a point of answer writing. ठीक है, तो अभी from now please make sure आपको political science का syllabus पूरे अच्छे से याद हो. Okay, can you tell me theories of state paper 1A में कौन कौन सी theories mentioned है syllabus में? Theories of state, how many theories are mentioned? The people who are in this session, एक एक करके, if you want you can quickly write down the names. Very good Harish. Liberal, neoliberal, very good. Marxist है theory, okay. Pluralist theory of state है, very good Kirti. Feminist theory, feminist ideology भी है, okay. Fascist theory है, right. Fascist theory of state से ज्यादा we read this about in political ideologies, fascism. उसमें yes we read about the attributes as well, okay. ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, उसके बाद हम शुरू करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट. What do you understand by a term post-colonial state? Let's say explain the post-colonial theory of state. What do you think? आपके दिमाग में क्या आता है इसको सुन के? ठीक है नीतीश, 1947, okay. 1947 will be for India, okay. But in general आप इसमें क्या सोचते हो, इसमें क्या होना चाहिए इसमें? What should be the constituent of this question? इस क्वेश्चन के आंसर में what should be a part of this? Right, we have to speak about decolonization. Yes, बिल्कुल सही है. And और क्या होना चाहिए इसमें? Third world countries, absolutely. End of sovereignty, okay. Can you think of any scholar associated with post-colonial state? Abhi I am just putting some things in your mind, that's all. Subaltern perspective, ठीक है. Hamza Lavi, very good. Hamza Lavi gave the concept of overdeveloped state. Soft power, okay. और कुछ? महातीर मोहम्मद, चलिए आप लोग को कुछ स्कॉलर्स भी याद आ रहे हैं, वेरी हैप्पी टू सी. तो अब देखो, आप योर ऑब्जेक्टिव शुड बी, ठीक है. इनफैक्ट मैंने अपने जो एक आई थिंक मैंने एक वीडियो डाला अपने चैनल पे इन विच आई एक्सप्लेन हाउ आई गॉट 162 मार्क्स इन पेपर 1. इन जनरल भी व्हेन यू हैव टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स, डेफिनेशन should be at your fingertips, okay. Second, you should know scholar कौन है, which is the scholar. So you should know, number one, the definition, you should know the scholar. Then what are the attributes? So for example, when I say a liberal state, वो liberal state में क्या 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 होता है, that is something I need to know, right? And if possible, in many cases you will also find criticism, ठीक है. अब criticism क्यों? And then I'll explain you. See, this is a humanities subject, okay. Humanities subject में every theory has almost been criticized. किसी ना किसी theory को दूसरी theory ने एक तरह से उस पे criticism करा होगा, चाहे वो प्लेटो हो. प्लेटो को किसने criticize किया है, किसी को याद है? Anybody who can recall? Plato has been heavily criticized by a famous scholar, ठीक है, एरिस्टोटल ने करा है. और कोई? कार्ल पॉपर, राइट, बिल्कुल सही है, राइट. एंड अगेन फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं, कार्ल मार्क्स हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय, यस अक्षय, एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, बिल्कुल सही है. कार्ल मार्क्स हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय लेट्स से मैक्स वेबर, अगेन ऑल्सो बाय कार्ल पॉपर, बिल्कुल सही हर्ष. बिकॉज कार्ल मार्क्स की एनालिसिस इज हेविली इकोनॉमिक इन नेचर. So Weber says this is nothing but economic determinism. Okay. So my point of discussing, देखो अभी जिसने नहीं पढ़ा है, let's say if you have not read your optional, ये point समझ में नहीं आएंगे. But मैं ये discuss इसलिए कर रहा हूं just to tell you that in humanities you have to think about multiple things. Scholar हो सकता है वो ancient times का हो, you might compare him with a medieval or a modern person, which is why
understanding and connecting of the topics is very much crucial in this. Okay, so now one by one I'll tell you a few things. Syllabus जो है आपका, whatever topics are mentioned in the syllabus, please start doing them. Okay, how can you start doing them? The question comes how. Okay, so one can be, many of you can refer some books. Many of you, I think आप में से काफी लोग ऐसे भी हैं who have done their graduation in political science, right? You can refer your old books as well, fine. But somebody who is very new to the subject and preparing for 2024 etc., okay, for them I think a better approach can be to go through notes. Okay, आप मैम के नोट्स से स्टार्ट कर सकते हैं टू डेवलप अ बेस. अब इसमें देयर इज वन चैलेंज इज दैट नंबर वन, the notes are not dynamic in nature. What, and when I say dynamic, it means 1B and in general paper 2 has a lot of dynamic elements. ठीक, 1B में अब आप जानते हैं, let's say what was the update which happened with Delhi from political science perspective very recently, बताओ कोई. पेपर 2 में तो let's say many things have happened in the last week. G20, ASEAN, military coup, especially let's say in Gabon, right? तो point is Delhi में what has happened very recently, कोई बता सकता है? Yes, absolutely correct. GNTCD एक्ट आया है, तो उससे रिलेटेड अगेन many things can be asked. One, federalism. Okay, second, और क्या हो सकता है बताओ? फेडरलिज्म पे सवाल बनेगा. और क्या बन सकता है? यस, इट्स एन ऑर्डिनेंस, सो यूज और परहैप्स द मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस in doing this, right? Second, the democratic functioning of elections, and again the people have, let's say, voted a particular government in power. लोगों ने एक particular government को वोट करा है ना? So whether we, उसका जो mandate है, whether that mandate is going to be recognized or not. So there are few things which are embedded in this one question. Second is G20. Yes, very good. One nation, one election. Yes, that's a very relevant topic. Similarly, so these are few topics. I think India and Bharat is also a debate which is going on, right? And even if you remove the politics of it, still that can be a question to think about. Okay, चलो एक हिस्ट्री का सवाल पूछता हूं. इंडिका सुना है किसी ने? Indica was a famous book by who? Megasthenes, right? And what do you mean? Indica का मतलब क्या था, कोई बता सकता है? What was meant by Indica? Right, तो ऐसा अब आप देखोगे, और जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, इंडस रिवर भी है जो पूरा पार्ट है. एंड सिमिलरली देयर आर अदर ओल्ड सिविलाइजेशंस. फॉर एग्जांपल, पर्शिया इज द मॉडर्न डे विच कंट्री? बताओ. Persia is Iran. So there have been civilizations that have had two names. So again, it is a point in which many opinions are there. Okay, so हमें उसमें भी ये देखना है. For example, what is for us to learn? So my point is 1B and paper 2 के लिए my very simple advice to you will be, बहुत simple advice आपके लिए, आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं किसी एक न्यूज़पेपर के. ओनली वन न्यूज़पेपर आई एम सेइंग. ओके, you can choose Indian Express, you can choose Hindu, whatever you want, but it should be only one. Okay, because I know it becomes very difficult to manage. And if you start or have the habit of reading editorials, for example, if you read Indian Express, वहां पे C. Raja Mohan writes a weekly blog, right? C. Raja Mohan is one of the prominent scholars on, let's say, international relations. तो आपको बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं, राइट? तो स्टार्टिंग में डोंट रन आफ्टर अ लॉट ऑफ, लेट्स से, न्यू या बहुत ज्यादा सोर्सेस के पीछे. इफ यू रन आफ्टर इट, you might not be able to manage it. Okay, and especially in this regard, 1B or paper 2 के लिए on Platonic, from now you will find interesting analysis on all these current, let's say, updates. ठीक है, तो जो भी updates होंगे
तो एटलीस्ट जो पॉल साइंस का करंट अफेयर पोर्शन है उसमें आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट. ओके, सो वहां पे एटलीस्ट, क्योंकि मेनी टाइम्स मेनी स्टूडेंट्स हैव एन इशू ऑफ हाउ टू डू दैट. सो देयर आई थिंक यू माइट, लेट्स से अगर आपको पता चल जाए ये चीज इस टॉपिक में है, इस सिलेबस के टॉपिक में, व्हाट आर द कीवर्ड्स फ्रॉम एन एडिटोरियल एक्सेट्रा. ओके, सो लेट्स से आई मेंटेन दिस होल, लेट्स से लिस्ट of keywords, so on and so forth. So that perhaps can make your job easy. Okay, so that can be done. Okay, Priyanshu, you wanted to ask books, etc. देखो books मैं आपको individually हर एक की बता सकता हूँ. For example, for Western political thought, there is a book by Brian Nelson. Okay, अब read this only if you have a lot of time. Otherwise, अगर आप 2025, 2026 में if you're preparing, then it's good. Okay, other than that, I don't find a lot of utility in reading a lot of big books. Fine. बहुत बार क्या होता है, लेट्स से यू गिव अ मेंस, आपके थोड़े मार्क्स कम आए, बेस्ड ऑन दैट लेट्स से इफ योर पेपर 2 वाज लैकिंग, देन परहैप्स मैं आपसे बोल सकता हूं कि एंड्रयू हेवुड या लेट्स से बेलिस स्मिथ में ये चैप्टर पढ़ लो, है ना. बट देन दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आप में लेट्स से कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, राइट. इन अदरवाइज इफ आई टेल यू अ बुक ऑन एवरी, फॉर एग्जांपल एंड्रयू हेवुड की देयर इज अ वंडरफुल बुक ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. जिसको भी आइडियोलॉजी अच्छे से पढ़ना हो, दे कैन रीड दिस बुक ऑन एंड्रयू हेवुड. ओके, बट दिस अगेन मीन्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इन्वेस्टमेंट. उससे अगर आपके पास टाइम कम है तो गो थ्रू लेट्स से एटलीस्ट मैम्स नोट्स वंस, सी प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से, ट्राई टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड देन मूव अहेड. प्रियांशु, एटलीस्ट ऑन वीडियोस फ्रंट अभी देखो मैं because the moment this mains ends, abhi mains tak ke liye I am very much occupied. After that, at least on these important portions, right from thinkers to ideologies, I will also be making a lot of explainer videos on YouTube itself. ठीक है, so how to cover those topics, wo काफी हद तक I'll try to plug that gap. Okay. Second thing is देखो, this is actually an ask me anything session, right? तो मैं इसमें बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं. After few points I will be basically I'm interested to take your doubts. Okay, I will have a recorded video of mine on the sources book list strategy. वो एक recorded video I'll put on Platonic channel. Fine. यहाँ पे my point is to explain things to you and then take your doubts. Okay. तो book list क्या रहेगी exactly, which ma'am notes I am talking about? Shubhra ma'am's notes, Swapnil. So that is in general available. Okay, so वो आप देख सकते हैं. That has a good, let's say, collection of many things. Okay. Okay, so अभी जो sources वाले doubts हैं, that also I'll take care of. Other than that, देखो, let's say आपको समझ नहीं आ रहा है, I will also tell you, इग्नू का freely available material है, very very high quality. In fact, most of the notes of coachings etc borrow a lot of stuff from IGNOU. ठीक है, IGNOU yes वो दोनों में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, वेरी हाई क्वालिटी, बहुत कंसाइज क्वेश्चंस के साथ. इट इज वेरी गुड मटेरियल, वो भी आप देख सकते हैं आप लोग. आई हैव ऑल्सो रेफर्ड टू IGNOU मटेरियल, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है. प्लस मैंने कुछ जो बुक्स रेफर करी वो मैंने अपने समय भी पढ़ी हुई थी. आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, आई गेव अ लॉट ऑफ, मैंने अटेम्प्ट्स भी काफी दे रखे थे, तो ऑफ कोर्स मुझे जब जिस टॉपिक में इफ आई वांटेड टू गेन मोर क्लैरिटी आई डिड दैट. फाइन. सो अगेन माय पॉइंट इज सिलेबस अच्छे से गो थ्रू द सिलेबस फॉर एवरी टॉपिक. फर्स्टली डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, राइट, एंड प्लीज मेक श्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, चलो थोड़ा सा लेट मी मेक यू स्लाइटली अनकंफर्टेबल. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीबडी. ठीक है, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, और ये सवाल स्पेशली उसके लिए हु हैज रेड अ बिट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. माय क्वेश्चन इज, प्लीज इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ and please explain to me in let's say 30 seconds or 1 minute, what do you think means or what is postmodernism. कोई ऐसा है जो इसको अटेम्प्ट करना चाहेगा, पर आपको बोलना पड़ेगा. What is postmodernism? Postmodernism is a post-truth era in which no any particular truth is there. ठीक है, और कुछ बताओ आप. Is this Akshay speaking? Yes, yes. हाँ, please please.
Okay, post truth, anything else, any thinker which comes to mind, scholar? Michael Sandel may be there. नहीं, it is Michel Foucault. Yeah, Foucault. Okay. Sandel is different. Power. Sandel is a communitarian. Knowledge is power. Knowledge is अरे power. वाह, एब्सोल्युटली ठीक है। और कुछ? No, I can Anything else? remember अच्छा this. ठीक, अक्षय, वेरी गुड। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू अटेम्प्ट दिस? मनीष, आप ट्राई करो। सर मैं हिंदी माध्यम का हूँ। हाँ प्लीज सर प्लीज। जो उत्तर आधुनिकता है वो मुख्यतः संशयवाद, व्यक्तिवाद और वस्तुनिष्ठता के बारे में मतलब चर्चा करता है, ये मुख्य ठीक है। रूप से। और सर जैसे कि आपने फूको का नाम लिया, इनके विषय में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। और सर ये मेरा मुख्य विषय नहीं है, पर चूंकि रुचि का विषय है इसलिए मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो मनीष ने, दोज ऑफ यू हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, मनीष ने एक ही लाइन में 3 वैल्यूज बताए पोस्ट मॉडर्निज्म के। ओके, सो अगेन दिस इज अ गुड वे टू आंसर। आपके पास बहुत कम टाइम था। हाउ व्हाट ही डिड, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बता दिया व्हाट इट इस, इसमें है क्या। ठीक, तो अब आप कोई भी आइडियोलॉजी पढ़ो, मैं आपसे बोलूं 1 सेकंड में आप मुझे फैशिज्म के बारे में बताइए, ठीक है, किसी के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, चलो अभी हम बात कर रहे थे पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं, पोस्ट मॉडर्निज्म बोलता है देयर इज नो सिंगल ट्रुथ। इनफैक्ट इट इज अगेंस्ट रेनेसा या द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, कि जो भी साइंस बोलता है, साइंस क्या कहता है, देयर इज ओनली वन डेफिनेट थिंग। पोस्ट मॉडर्निज्म उसको भी एक तरह से खारिज कर देता है। लेट्स से इट गोज इवन अगेंस्ट अ नोशन ऑफ बीइंग एबल टू फाइंड अ सिंगल ट्रुथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट क्वेश्चंस एवरीथिंग विच इज देयर, है ना। इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग फिलॉसफी बोली जाती है, कि दिस इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज अ लॉट ऑफ लेट्स से ओल्ड या लेट्स से ओल्डर बिलीफ्स। इट इज अगेंस्ट ट्रुथ, इट इज अगेंस्ट वन सिंगल नोशन। अगेन आप लोग जब आगे पढ़ोगे, यू विल रीड अबाउट डेरिडा, यू विल रीड अबाउट फूको, ओके, एंड मेनी अदर थिंकर्स। तो अब आपको पता चलेगा। बट माय पॉइंट इज, जब भी कोई चीज पढ़ो, तो अब पोस्ट मॉडर्निज्म का इन्फ्लुएंस इन जनरल, which let's say thinkers were impacted, read about it, okay, because this post modernism actually आप पढ़ोगे constructivism and mostly a social constructivism approach. Within that you read about feminism, within that you read about postmodern let's say school. तो हम समझेंगे कि ये सारे जो schools हैं, they are questioning the existing motives. Fine. So again, the point is, whatever theory you read about, and I will say spend, अगर देखो एक एक करके मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पेपर 1 में मास्टर बनना है, ओके, एंड अगेन आई ऑल्सो टॉक अबाउट पेपर 2। पेपर 1 में मास्टर होने के लिए देयर आर 2 पिलर्स। 1, आइडियोलॉजीज एंड थिंकर्स को बहुत अच्छे से करो। इनफैक्ट समटाइम्स आई इवन टेल माई स्टूडेंट्स दैट डू आइडियोलॉजीज पहले एंड देन डू द थिंकर्स। आइडियोलॉजीज में बहुत थिंकर्स हैं, एंड द मोमेंट यू डू दीज 2 टॉपिक्स, थ्योरीज ऑफ स्टेट अपने आप तैयार हो जाता है, एंड आइडियोलॉजीज ऑफ थिंकर ऑल्सो स्पोक अबाउट कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड राइट्स, ठीक है। तो जितने भी नोशंस हैं विच इज मेंशन्ड, आप समझ जाते हो। और बहुत बार क्या होता है, अगर आप यहां से भागोगे कि अरे यार चलो मैं ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ने वाला हूं, लेट मी लीव इट, इस साल इफ यू सी द पेपर ऑफ दिस ईयर, अगेन अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रॉट्स्की का एक डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया उन्होंने। हैव यू सीन द पेपर ऑफ 2022? आप लोगों ने पेपर देखा इस साल का? एनीबडी? हाँ, तो वहां पे अ क्वेश्चन रिलेटेड टू रेवोल्यूशन वाज आस्क्ड। अगेन बहुत लोग सोशलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, राइट, कम्युनिज्म, मार्क्स नोशंस ऑफ सोशलिज्म, वो उसको उतने अच्छे से नहीं करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट बोथ ग्रामसी, मार्क्स एटसेट्रा, राइट। सो माय पॉइंट इज दैट इन चीजों में थोड़ा सा समय लगाओ, टेक सम टाइम, ओके, एंड दिस इज वेयर और यू गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। फिर आपको जस्टिस में हर चीज समझ में आ जाएगी, राइट फ्रॉम प्लेटो टू जॉन रॉल्स, राइट।
तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इट विल बिकम इजी फॉर यू स्लोली स्टेडली, बट एकदम से नहीं होगा. आई एम सेइंग अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट सेइंग रीडिंग. रीडिंग यू कैन डू वेरी क्विकली, अंडरस्टैंडिंग टेक्स सम टाइम. थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, प्रीवियस से क्वेश्चंस देखो, चीजों को समझो, समझ थोड़े टाइम बाद विकसित होती है, बनती है. ठीक है. सिमिलरली पेपर 1B की बात करी जाए, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. बट जैसे कुछ लोग को ऐसा लगता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे हो जाएगा पेपर 1B, ऐसा नहीं है. पेपर 1B में आपको करंट काफी पढ़ना पड़ता है. क्यों? वाई? इलेक्शन पे केस स्टडीज, कास्ट, पॉलिटिक्स या एथनिसिटी, ये सारे जो पूरे केसेस हैं, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, विमेन मूवमेंट्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. अब ये थोड़ा सा ज्यादा नुआंस्ड होता है. दिस इज मोर लेट्स से टेक्निकल इन नेचर इन दिस केस. फाइन. सो वाइल लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो बहुत बेसिक है, बहुत बेयर रिक्वायरमेंट है. यू ऑल्सो हैव टू डू थिंग्स बियॉन्ड लक्ष्मीकांत एज वेल. इंडियन नेशनल मूवमेंट को यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट परस्पेक्टिव, है ना, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव क्या है, ठीक है, ये लिबरल परस्पेक्टिव क्या है. तो पॉइंट इज यू विल अच्छा, हाउ टू मेक कंबाइंड नोट्स फॉर GS2 एंड 1B मैं आपको बताता हूं, पर देखो 1B वाला भी पार्ट में बता रहा हूं. बट अभी रिमेंबर आवर बेस हैज टू बी पॉल साइंस, उसके बाद हम GS2 के बाकी पोर्शंस करते हैं, राइट. ओके. अच्छा, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड हियर, आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग स्लाइटली, बट दैट इज फॉर अ रीजन. देखो, if you take pol science as an optional, you are not just targeting 500 marks, but you are targeting 750 marks, 250 of GS2. ठीक है. अब GS2 में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो जाती है बिकॉज ऑफ पॉल साइंस. IR के 4 क्वेश्चंस आपके डन हैं, बट व्हाट इज पेंडिंग इज सोशल जस्टिस एंड द लास्ट इज गवर्नेंस. नाउ दिस इज ऑल्सो गुड बट दिस इज ऑल्सो बैड. आप नोटिस करोगे बहुत बार स्टूडेंट्स हु टॉप GS2, जो GS2 में सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं, आर नॉट द पीपल हु हैव पॉल साइंस एज एन ऑप्शनल. कैन यू टेल मी व्हाई? ऐसा क्यों होता होगा? Why do people who have GS2 and pol science, why don't they top but somebody else? ऐसा क्यों होता है? टेक्निकलिटीज, और कुछ सोचो, और कुछ सोचो. Anything else? Anything else? Anything else? ओवर कॉन्फिडेंस. यस, ओवर कॉन्फिडेंस इज वन. देखो बहुत बार क्या होता है, समटाइम्स you think that you are extremely good in polity and constitution. One is that you don't revise it enough. ठीक है, आप बहुत बेसिक वाली चीजें छोड़ के चले जाते हो. सेकेंड, इट कैन बी सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस पे उतना एडिक्वेट फोकस नहीं दिया. एंड इमेजिन द केस ऑफ अ स्टूडेंट हु इज गोइंग फॉर GS2, उसको लग रहा है मेरे पास कोई ओवरलैप नहीं है, इफ आई डू नॉट प्रिपेयर आई विल फेल द पेपर. तो दे यूजली आई हैव सीन दे पुट इन मोर हार्ड वर्क, बट इट इज नॉट एज इफ कि पॉल साइंस वाले बच्चे GS2 में स्कोर नहीं करते. दे आर डूइंग इट, बट sometimes they do not do everything that has to be done properly. Fine. So again, when I say that you have to prepare pol science, I also mean GS2 भी अच्छे से करना साथ में, है ना. देखो टेक्निकलिटीज की बात नहीं है. देखो सुप्रीम कोर्ट केसेस you have to mention in GS2 as well. Important committees you have to mention. Fine. तो वो तो करना ही करना है, बट यू ऑल्सो हैव टू एंश्योर. हाँ, अब ऐसा नहीं है कि IR में आपको बहुत ही टेक्निकल मॉर्गेंथ्यू से लेकर सारे स्कॉलर्स को कोट कर देना. यू डोंट हैव टू डू दैट इन IR, राइट. सो द पॉइंट इज you have to understand that yes, GS2 requires a slightly different approach and pol science requires a technical and an optional oriented approach. But if you already have, अगर आपके पास ये ऑप्शनल है तो 750 नंबर तो आपको मिलेंगे मेंस में. बट सेकेंड थिंग, आई ऑल्सो डिस्कस दिस विद सम ऑफ यू, प्रीलिम्स में you have a lot of advantage. I'll tell you how. Number 1, मैपिंग क्वेश्चन कोई भी साल के देख लेना आप. IR में आप ये सब कुछ पढ़ते हो, चाहे मिलिट्री कू है, if there is Russia Ukraine conflict, everything which is there, mapping you read about. IR bodies पे UPSC बहुत सवाल पूछने लग गया है अभी.
right from G20, right from UNCLOS, UN, so on and so forth. More questions are coming, international institution based. Defense deal, US की है, anything, they are asking you questions on that. Fine. Of course, polity and constitution में questions पूछता है. Then you also read political theory, positive liberty, negative liberty, what is equality, what is equity. तो political theory NCERT में जो questions से concepts हैं, that you also read about. So the point is you also have a leverage in prelims as well, provided आप इस तरह से notes बनाओ और इस तरह से मेहनत करो. Okay. So again, my point is that this is something that you should definitely be keeping in mind when we are talking of how to utilize these portions. Mapping, IR, defense, polity, sab kuch, try to do that. Fine. Coming back to our point of discussion. Okay, so we did talk about understanding. Right. हाँ. तो paper 1B में भी make sure current updates follow करो and read newspaper or editorials, or let's say you follow some analysis which I share on my channel for few time, 1 to 3 months. Then things will start to accumulate. समझ में आओगे. Okay. Again, for this year, for mains 2023, we also had some videos from our team. Okay, trying to revise some important international events. I think we have around 10 odd videos हमने डाले हैं. आप में से किसी ने देखे हैं वो अभी? वैसे I'm just asking. IR पे काफी वीडियोस डाले हम लोगों ने. फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस से लेकर देयर आर मेनी वीडियोस एटसेट्रा, एंड मेनी few videos are also planned. Okay, the whole idea is that ultimately you should be able to consolidate your material. हाँ, yes, on Platonic, yes. अगर आप मटेरियल को कंसोलिडेट कर पा रहे हो, दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. पर कंसोलिडेट करना तब है जब थोड़ा सा समझने लग जाओ. ठीक है. पेपर 2 बहुत लोग को मुश्किल लगता है. उसकी रीजन ये है, यू हैव टू रीड अ लॉट अबाउट इट, कनेक्शंस बहुत बनाने हैं. एंड अगेन आई जस्ट इरेज दिस स्लाइड. पेपर 2 में पेपर 2A वाज लार्जली स्टैटिक इन नेचर, और पेपर 2B में क्या होता था, आपसे बायलेटरल या बेसिकली सवाल पूछ लिए जाते थे. अब क्या हो गया, दे आर नाउ आस्किंग यू डायनेमिक क्वेश्चंस इन पेपर 2A एज वेल. फाइन. तो अब वो देयर इज नो बाउंड्री. अगेन दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन आसियान करंट अफेयर्स बेस्ड पेपर 2A में इन द टॉपिक रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अगेन रियलिस्ट थ्योरी को, और लेट्स से न्यूक्लियर डिटरेंस, एनीथिंग they can link it with the current happening. फिर से पूछ लेंगे आपसे. राइट. तो पॉइंट यही है, इसको समझने के लिए PYQs कहां से करने हैं. अक्षय ऑन PYQs, आई विल बी डिस्कसिंग PYQs ऑन माय चैनल. ठीक है. स्टार्टिंग में स्पेशली बिकॉज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि सर आप कुछ समझाओ तो बता दो. आई विल डू दैट. सेकेंडली, हम ये कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पहले पढ़ो, टॉपिक लिखो उसको. I will also create a dedicated answer writing group for Pol Science for 2024 and beyond वाले बच्चों के लिए. Okay. This meeting is for optional students. आपके पास, if you have any doubt, you can just drop me a message, which is, let's say, if it is a GS or any other doubt. If you are patient and if you, let's say, आप meeting के end तक हो, then I can take your doubt. But अभी for now we are talking about Pol Science in general. देखो, if it is getting too informative, you have to be informative, right? But you also have to strike a balance, and this can only happen when you devote some time. Okay. Answer writing is actually, in fact, मैं आपसे बोलूंगा एक चीज, if you are writing your notes, लिख लो कहीं पे, पहले 50 या पहले 100 आंसर्स आपके, the first 50 or first 100 answers will not be that good. Not that good. Okay. And the reason I'm telling you this is, don't expect to write best or very high quality answers after one test or so. It will take some time. Okay. तो वो चीज का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे. अब देखो, let's talk about paper 2. Somebody asked me G20 global happenings. पहली बात, how to be updated. Very easy. How to be updated. Follow your newspaper. Only one newspaper. You will be updated, number one. Second is how to connect these things. One small thing is, take out
and don't take the printout. Write the entire syllabus of Pol Science with your own hands. अपने हाथ से Pol Science का syllabus लिखो, पेपर 1A, पेपर 1B, पेपर 2A, पेपर 2B, अपने सामने चिपकाओ. Now and this exercise चलो लाइव करते हैं आपके सामने, ठीक है? जो डाउट स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, लेट मी टेक दिस डाउट. डाउट ये था, हाउ टू लिंक इंटरनेशनल इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन अ रेगुलर बेसिस लाइक G20 एंड इट्स इफेक्ट ग्लोबली. ठीक है, आप लोग लेट से, चलो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा टास्क देते हैं, अभी मिलके करते हैं. एंड समबडी प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट स्लाइड. ठीक है, चलो लेट अस प्रेडिक्ट द पेपर ऑफ 2023 PSIR. ओके, आई एम ओपनिंग. और ये है, दिस इज कोलैबोरेटिव. आप मुझे टॉपिक्स बताओगे, हम उसमें सोचेंगे हाउ कैन वी लेट्स से ब्रिंग दिस अलोंग. ओके, सो नंबर 1, let us participate here. All of you have been reading some current affairs here or there, right? आपको क्या लग रहा है इस साल के मेंस में क्या सवाल आएगा? टॉपिक लिखो आप बस. ऑल यू हैव टू डू इज टॉपिक. मैं उस पर सवाल बताता हूं आपको. ब्रिक्स, G20, और बताओ, और सोचो. एंड अगेन, आप में से जिसने रीड योर फेलो स्टेटमेंट, उसको रिपीट मत करो. उसको रिपीट नहीं करेंगे हम. ठीक है, समबडी गुरविंदर ने सोफिस्ट के बारे में लिखा है, क्लाइमेट चेंज. हम अभी पॉल साइंस की बात कर रहे हैं बाय द वे. ठीक है, डेमोक्रेसी. गैबोन, SCO, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. आई थिंक वी हैव हैड वेरी गुड क्वेश्चंस. नाउ देखो, अभी क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, व्हेन यू रीड, एंड इन फैक्ट आई विल टेक योर पॉइंट्स हियर एंड आई ट्राई टू लिंक. नंबर 1, when you read any topic for that matter, let's say we are reading about ASEAN, fine. अब ASEAN में one of the things is of course India. Few time back India leaving out, or let's say going out of RCEP. आपने सुना होगा इसके बारे में, नहीं सुना है तो I'm just telling you. Second, इसी से embedded, when you see your syllabus, there's a topic known as regionalization of world politics. That when you talk of the world, small regions एक बन गई है, छोटे छोटे गुट बन गए हैं हर जगह. ठीक है, तो वो इफ यूपीएससी को अगर सवाल पूछना होगा, वो हो सकता है लिख दे कि द डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ आसियान चेंजेस द ग्लोबल डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. उसने आसियान भी पूछ लिया एंड इट हैज आल्सो आस्क्ड यू सेकंड कंपोनेंट. फाइन. समबडी, ये एक सवाल हो सकता है, समबडी स्पोक अबाउट G20. अब G20 पे one of the questions, let's say I am assuming, can be that the Chinese and the Russian choosing not to attend G20 is a sign of a change in contemporary world politics. मैंने रशिया चाइना की बात कर दी, मैंने G20 की बात कर दी, और मैंने लिंक कर दिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स से. नाउ दिस हैज बिकम अ वेरी नुआंस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर नहीं बना, राइट? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Second thing can be, how does, for example, India's presidency of G20 help it in getting a seat in UNSC? Now I've linked G20 with UNSC. तो आप बार बार बताओगे कि इंडिया के कैंडिडेचर, that why should India be a member of UNSC and how does the presidency of G20 help, right? अब ये हम, this we are just thinking right now. Fine. Again, what do you think? और क्या सवाल बन सकता है G20? So if you when you read a topic, now everybody has read, for example, you know कि India has given mission life, sustainable development, many things. Now imagine what can UPSC ask of G20? That okay, that G20 as a block has failed, critically analyzed. चलो अब सोचो, it can be a question, right? जानबूझ के बहुत ही लोडेड और बहुत ही नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन दे दिया आपसे. और इट कैन बी जस्ट, फॉर एग्जांपल, दैट G20's मीटिंग्स, हाँ, अक्षय has written it's a pipe dream, or it is just like it's a stumbling block. Fine. Very very good question, Raghvendra. Let's see. देखो, बहुत अच्छा सवाल लिखा है. Inclusion of African alliance is leading to a new world order of world politics, right? And every question demands a new method of thinking. आप लोग एक और टर्म भूल गए, आई थिंक, और लेट्स से मैंने पढ़ा नहीं शायद,
Global South, everybody is talking about Global South, right or wrong? For example, it was said that G20s, right? तो उस पे भी there can be question asked on it. Absolutely. Anant, role of guest countries in G20 and impact on global politics, right? तो point is, हम ये क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए आपको हेल्प बता रहा हूं. People are scared of paper 2. Paper 2 में अभी भी, for example, आप, let's say many of you had perhaps seen the movie or read about a movie known as Oppenheimer, right? Again, a question can come, for example, a question on nuclear deterrence theory. Now, if somebody has read about, let's say, Paul Science, can you tell me nuclear deterrence? Any scholar on nuclear deterrence जिसने पढ़ रखा है ये? थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चन है ये. बिगिनर्स शायद नहीं पढ़ा होगा आपने. डोंट वरी, बट स्टिल आई एम जस्ट आस्किंग यू. इफ यू हैव रेड, यू कैन लेट मी नो. Very good question again by Akshay. In fact, Akshay, 2019 में there was a question asked, which was how nuclear deterrence theory impacts India's Pakistan relation. Harshit, this kind of question can also be asked in your interview जो आप पूछ रहे हैं कि if we hold a summit, is it helping the hosting country or not? Holding नहीं, वो hosting country एक ज्यादा better term है. CTBT, NBT, but अच्छा, I think आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना? I think nuclear deterrence, anybody here who has read about it? But वो उसके लिए I think जो बहुत से एक बार पढ़ चुका होगा, I think. मनीष, आप बोलना चाह रहे हैं? यस सर. सर, ये परमाणु अप्रसार सर, मैंने हैंड रेज किया था. सर, मैं परमाणु अप्रसार संधि के विषय में सर, न्यूक्लियर डिफेंस. जी जी सर, ये बेसिकली परमाणु को, क्योंकि इस युद्ध के, चूंकि परमाणु युद्ध होता है, तो उसकी विभीषिका के परिणाम के संदर्भ में इसको बताया गया कि किसी भी देश के लिए परमाणु हथियार या संयंत्र बनाना पूरे विश्व के जो विभीषिका है उसकी निशानी है. तो इसको रोकने के लिए परमाणु निवारण संधि हुआ था, तो इसी के संदर्भ में ये है. ठीक है. और एक्चुअली मैं आप लोग से थोड़ा सा और एक और लेवल आगे पूछना चाह रहा था. मैं इसमें थोड़ा सा रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव और लिबरल पर्सपेक्टिव पूछना चाह रहा था. और इसमें क्या एक आपने स्कॉट सगान वाली डिबेट सुनी है? स्कॉट डी सगान, आप लोगों ने, किसी ने? अगर नहीं तो एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ी होगी. एक्चुअली मैं फिर बहुत ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाना चाह रहा हूं अभी. बट दिस इज अ डिबेट एक होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में. वन साइड actually proposes that nuclear weapons can be used and other does not. और उसके बीच में नीना टैनलवॉल्ड का एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आती है. ठीक है, कोई बात नहीं पढ़ी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ओके, ठीक है. सो माय पॉइंट अगेन हियर इज दैट जो भी टॉपिक पढ़ो, फॉर एग्जांपल, अब अगर इफ यू, एंड वन ऑफ द वेरी गुड टॉपिक्स एवरी ईयर व्हिच इज आस्क्ड इज दिस न्यूक्लियर. इस साल भी आप देखना 2023 में यू विल आल्सो सी अ क्वेश्चन ऑन दिस न्यूक्लियर टॉपिक. You can also see a question on EU and again a derivative of Brexit. कुछ ना कुछ घूम घाम के वो हमेशा पूछते हैं. I2, U2, they can ask you this year, right? तो पॉइंट है, पॉल साइंस पे टॉपिक आप कर सकते हो प्रेडिक्ट, बट समटाइम्स हम वैसे मतलब वी डोंट रीड अबाउट इट दैट वे. सेकेंड, हम जो चीजें पढ़ते हैं, अगेन विच, ये मैं अंडरस्टैंडिंग और सब चीजें एक साथ आपसे ये क्यों बोल रहा हूं, फाइनली द पॉइंट इज to make some notes. If you read bulky compilations, आप उसको highlight कर रहे हो. If you don't make your notes, आप अपने notes अगर नहीं बना रहे हो, तो consolidate last में होगा नहीं, हौच पौच रहेगा. Scholars अच्छे लिख नहीं पाओगे, definition याद नहीं रहेंगी, and ultimately अगर आपको मान लीजिए 250 में 140 150 मिलने चाहिए थे, आपको वो कट कटा के फिर 110 115 मिलते हैं, तो फाइनल स्कोर हो जाता है 230 के आसपास ऑप्शनल में. वो दैट इज not a very good score to get selected. Fine, that is a problem which actually happens. Okay, very good, Ananta. Okay, तो देखो, एक तो है you are following toppers notes, fine, but I will also say consolidate करके finally अपने notes बना लो, because everybody has a different way to make notes. Okay, so while you should refer to the best copies, good terms, है ना, but last में exam से पहले what are the weapons जो exam में लेके जाओगे, that is very much important for you to know and have. Okay,
अब मुझे ये जानना है, यस यस यू शुड मेक योर ओन नोट्स, बट माय पॉइंट इज नोट्स कैसे बनने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो अभी हम आपसे बात कर ही रहे हैं, प्लेटो सबने पढ़ रखा है यहाँ पे, एवरीबडी हैज रेड प्लेटो, हैज एवरीबडी रेड प्लेटो, ठीक है। इफ यू हैव नॉट रेड नो प्रॉब्लम, बट वन सेकेंड, ओके बेसिक बुक अंकुश आई डिड से दैट, देखो व्हाट आई डू, बेसिक बुक रिलेटेड आई विल मेक अ वीडियो, बट अगेन आई एम सेइंग इट इज बेटर इफ यू प्रेफर इग्नू एटसेट्रा, ओके। अच्छा इफ यू आर अ टोटल बिगनर, अगेन देखो ये अप्रोच आपको हेल्प करेगी कंसोलिडेट करने में चीजों को, फाइन। तो इसमें घबराओ मत अभी इस चीज को देख के कि अरे सर आप क्या बता रहे हैं हमको, प्लेटो तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब क्यों बता रहे हैं प्लेटो को, ओके फाइन। सो अभी एंड बाय द वे दोस्तों जो ये इसको लिखना चाह रहे हैं उसको लिख भी सकता है, बहुत छोटा सा फ्रेमवर्क है मेरा, ओके। बट इसका फायदा क्या होता है, इससे चीजें याद हो जाती हैं, ओके फाइन। And if you still want, very shortly, I will also release some of my notes in this format, and perhaps I'll also make few videos on it. But still, आप लोग ने you are very, let's say, alert to join this session, तो आपको फायदा भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, if you want to write it down with me, you can write it down. One heading should be introduction, and these, by the way, are very short notes. These are very helpful before the exam, ठीक है। Introduction, ठीक है। Books, theory, keywords, कोट्स, और ये सब एक ही जगह हो, और ये एक फ्रेमवर्क है, इसको आप, इस फ्रेमवर्क में आपको नोट्स बनाने, मैं आपको बता रहा हूं इसको कैसे करना है, ठीक है। की कोट्स हो गया, सिग्निफिकेंस, क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन, ये फ्रेमवर्क लो आप, ठीक है। एंड टेक दिस फ्रेमवर्क अलोंग ऑल द थिंकर्स एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ सिलेबस। अब पेपर 1B में थोड़ा सा फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है, इन पेपर 2 ऑल्सो इट स्लाइटली चेंजेस, बट स्टिल मोर और लेस ऐसे ही होगा। एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल, आई विल टेक प्लेटो, ठीक है, बिकॉज प्लेटो सबने पढ़ रखा है। अब जो जो चीजें पढ़ ली हैं, अब आपको ये करना है उसके लिए। मेनी ऑफ यू हैव अ चैलेंज इन राइटिंग इंट्रोडक्शन, ठीक। कोई भी मॉडल आंसर देखो, टॉपर कॉपीज देखो, कुछ भी देखो, बुक देखो, कुछ देखो, प्लेटो से रिलेटेड कोई भी अच्छी 2-3 लाइन लिखे आपको, जनरल, आई एम सेइंग जनरल, राइट इट देयर। इंट्रोडक्शन, एक जनरल इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। इन मेनी क्वेश्चंस यू कैन यूज अ जनरल इंट्रो, बट लेट्स से अगर क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, दैट लेट्स से जस्टिस वाज द आर्किटेक्टोनिक नोशन ऑफ प्लेटो, या जस्टिस प्लेटो के लिए सबसे जरूरी थी, तब प्लेटो के इंट्रोडक्शन से ज्यादा जरूरी है शायद आप प्लेटो जस्टिस को लिंक करो इंट्रो, बट स्टिल देयर विल बी सम जेनेरिक क्वेश्चंस आल्सो, फॉर दिस इंट्रोडक्शन इज फाइन, है ना। प्लेटो की बुक अब इस तरह से आई विल मेक, आप याद सोचो, चलो एक थोड़ा सा लेट्स से डू अ पॉइंट। प्लेटो की बुक का नाम क्या है? वेरी गुड। अरिस्टोटल की बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स, ओके। एंड वेरी फेमस लास्ट, चलो पूछ रहा हूं बुक, मैकियावेली की बुक का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ मैकियावेली? वेरी गुड नमन, वेरी गुड, वेरी गुड प्रिंस, ठीक है। तो आप बुक्स के नाम याद करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल अभी मैं एकदम से रैंडमली पूछ लूं, जॉन मीर शाइमर, ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या होगा? फॉर दोज हु, अगर किसी ने पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ रखा है तो नो पॉइंट, कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे। देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ प्लेटो, ठीक है। तो थ्योरीज में भी फॉर एग्जांपल आप इसमें पढ़ते हो, व्हेन यू रीड अबाउट प्लेटो, कि प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ जस्टिस, द थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग एटसेट्रा के बारे में बात करी हुई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं उनके नाम लिख लिए। अब ये लास्ट के स्केलेटन नोट्स है, वेरी शॉर्ट नोट्स। नाउ कीवर्ड रिलेटेड टू प्लेटो, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द कीवर्ड ऑलवेज हैज टू बी एलिगरी ऑफ केव्स, ठीक है। और कोई कीवर्ड बताओ मुझे प्लेटो का।
philosopher king, anything else? Plato is an idealist. बहुत सिंपल जितने कीवर्ड्स हैं सब लिख लो प्लेटो के. What are some important quotes of Plato, है ना, या quotations attributed to Plato? अच्छा, एक चीज मैं और लिखना भूल गया यहाँ पे, मैं एक अलग पेन से लिख रहा हूं जिससे आपको दिखे अच्छे से. इन्फ्लुएंसेस भी लिख लेना कहीं पे, बिकॉज टू अंडरस्टैंड अ स्कॉलर और अ थिंकर यू नीड टू नो वो इन्फ्लुएंस किससे हुए थे. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस. ये बहुत अच्छा है पॉइंट हर्ष. अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. ये यूपीएससी आपसे एथिक्स में भी पूछ चुका है बाय द वे, और एथिक्स में तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, राइट. रियलिटी इज अ शैडो ऑफ आइडियाज, हमने बात करी ली उसकी, राइट. तो कोटेशंस हो गए साथ में. सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटो बेसिकली मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो, और कुछ नहीं. अब इसमें भी व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स, राइट. आपने सुना होगा बहुत लोगों का कि भाई political science is nothing but footnotes on Plato, right. व्हाइट हेड का स्टेटमेंट सुना होगा, और भी लोग का स्टेटमेंट सुने होंगे आपने. So that is one thing you can perhaps think about when you are, let's say, talking about this. Okay. Again, that is, let's say, one thing that you have to know about. Next is, other than, let's say, हम जो बात कर रहे हैं, is the criticism. This is also very important. For example, Plato is criticized by primarily Karl Popper. तो कार्ल पॉपर ने 3 तरह से क्रिटिसाइज किया प्लेटो को. वो 3 कीवर्ड्स लिख लो यहां पे. He talks about falsification. Plato is criticized for being a communist. सुना है आपने किसी ने? Enemy of open society, etc. Historicism, very good. Yes, very good point by Kirti, etc. कि you can be Platonic, anti-Platonic, but not non-Platonic. शायद आपको लग रहा है इसी से मेरे चैनल का इंस्पिरेशन भी शायद यहीं से आया है, राइट. ओके, so that is perhaps one thing that one can at least know about. Okay, and last is a conclusion of sorts. Conclusion में हम basically तारीफ कर देंगे, है ना. We will talk about, yes, also the first feminist thinker. So we will just basically say कि overall what was the contribution of Plato. For example, he influenced Hegel. He influenced a lot of idealist thinkers as well, right. तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है प्लेटो का, which something let's say we need to know about. Okay, so this is just one example of how to make notes. अब अगर आप इस तरह से कर रहे हो, does it give you a sense of confidence कि almost everything is covered in 1, 2 or 3 pages of one thinker? हाँ या ना? Does this give you a sense of completion? ठीक है, तो ट्राई टू डू दिस. देखो, नोट मेकिंग इज एन आर्ट, और एक बार आपने नोट मेकिंग मास्टर कर ली, ठीक है, तो मोर देन हाफ ऑफ योर बैटल इज वन. फिर सिर्फ करंट अफेयर्स अपडेट फॉलो करो बैठ के अच्छे से. बी अवेयर अबाउट इट. अगेन फॉर एग्जांपल, G20 पे कितने आर्टिकल्स आ गए, या लेट्स से किसी भी चीज पे. अब आप G20 पे अगर आपने 2 पेजेस में G20 के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन, हाईलाइट्स समराइज कर दिया, वो 2 पन्ने बस याद करो. एवरी टॉपर हु हैज गॉट गुड मार्क्स एटसेट्रा, दे विल टेल यू, इंस्टेड ऑफ द बुक्स फॉलो वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, ऐसे भी आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द टॉपर. वो क्या करती थी, वो जैसे उन्होंने पूरी एंड्रयू हेवर्ड बुक पे 3 लाइन याद है उन बुक की, बट वो 3 लाइन एग्जाम में लिख के आती थी. ओके, अगेन फॉर एग्जांपल, व्हेन आई आल्सो स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स, आई एंश्योर्ड दैट जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है कोटेशन में, एग्जैक्ट लाइन वो एग्जाम में गिरा के आने वाला हूं. ये एक ऑप्शनल का पेपर है. यू आर रिवॉर्डेड फॉर योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, योर प्रिसीजन एंड योर वोकैबुलरी. ये बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी. जीएस में जनरल है, वॉट एवर यू थिंक यू कैन राइट, इट्स ओके, बट फॉर ऑप्शनल इट इज रिक्वायर्ड दैट you use better things. Fine. How to use good vocabulary in terms of IR,
ठीक है, देखो शुभम, आई थिंक मैंने आपके काफी डाउट्स लिए हैं यहाँ पे, एक और भी डाउट ले लेते हैं आपका, हाउ टू, ठीक है, इसका बहुत नहीं 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 सोनिया, देखो सिंपल नोट्स में लाइंस का मतलब आई एम जस्ट रेफरिंग टू कोट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग अ क्वेश्चन ऑन कार्ल मार्क्स, इफ समबडी, तो उसमें कार्ल मार्क्स के एग्जैक्ट लाइंस, और लेट्स से समबडी हैज क्रिटिसाइज्ड कार्ल मार्क्स ऑन अ कीवर्ड, यूज दैट। ठीक है, अगर हमने यही कर दिया, दैट इज गोइंग टू गिव अस मैक्सिमम मार्क्स। सो अलग से बहुत बुक्स को नहीं छानना है, यू डोंट हैव टू बिकम लेट्स से दैट, बिकॉज वॉट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट, यूज दैट ओनली, उतना काफी है। You can use paraphrasing, Nitish, but for some things, for example, it is better if you use direct line. I'm not saying long lines, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं. I'm saying perhaps few very things ऐसे, when I read anything on Marx, I would want you to write at least एक तो अच्छे lines लिख दूंगा ना, कि let's say capitalists are their own grave diggers, right? और let's say मैं लॉक की बात करूं तो लॉक या हॉब्स की बात करूं, some statement about them, right? Let's say Hobbes is an absolutist. Hobbes में लेवियाथन की बात करो आप. So make sure you are, देखो, because your copy is going to be checked by a professor who is a pro at it. वो चाहेंगे आप ये चीजें लिखो, हाँ है ना? So that is something that you have to do additionally. Okay, yes, for keywords etc. देखो, if you are reading your newspapers, okay, then borrow keywords from the newspaper itself. For example, you will find terms like pax sinica. इस टर्म सुना है किसी ने? मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं यहां पे. Have you heard of these terms? I just wanted to ask. संचित, आपका जो पॉइंट है, बस मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं इसका आंसर. वन सेकेंड, आर यू, रुक जाओ, क्या हो गया स्क्रीन को मेरी? आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो ना, आंसर राइटिंग वाली? ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हाँ देखो, पहली बात तो, ऑन माय चैनल देयर आर 2 वीडियोस रिलेटेड टू हाउ टू, फॉर एग्जांपल, ओके, वन सेकेंड. हाँ, एक सेकंड रुको, एक यहाँ पे विंडो खुल गया. हाँ, देयर इज अ चैनल ऑन माय वीडियो, कीवर्ड्स फॉर आईआर. अभी बहुत जल्दी हम लोगों ने डाला था, जस्ट बिकॉज मेंस इज देयर. एक बार उसको आप लोग देखना, ठीक है? देयर आर 2 वीडियोस, वन इज स्पेसिफिकली फॉर आईआर, एंड बाय द वे अभी इससे और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस विल आल्सो मेक फॉर यू, बट अभी जस्ट गो आफ्टर दिस सेशन, प्लीज सी दैट, then you'll understand कि there are a lot of vocabulary phrases which are being used. If you understand that, तो answer में you are able to bring more specificity and you can make it slightly more attached. Okay, so that is something you can do. अनंत, सबसे आसान तरीका स्टार्ट करने का है, स्टार्ट विथ पेपर 1A, and additionally what you should do, you should parallelly also cover current affairs. ठीक है? तो उससे 1B के कुछ पार्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ यू आर अपडेटेड ऑन गवर्नर, है ना, और लेट्स से यू आर अपडेटेड ऑन प्रेसिडेंट, यू आर अपडेटेड ऑन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना, एंड यू विल आल्सो बी अपडेटेड ऑन 2A. और इसी चीज में आई थिंक फ्रॉम दिस वीक इटसेल्फ आई विल आल्सो बी, इफ यू सी द प्लेटोनिक PSIR चैनल, तो उस पे मेरा एक न्यूज लेटर आएगा. उस न्यूज लेटर में जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उस हफ्ते के हैं, a video explaining those things etc will be there as a recurring feature every week. Okay, उससे भी you will let's say find it easier to analyze things, but still I would say थोड़ा सा खुद से भी रीड करिए. PSR के लिए मैगजीन से करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं संचित, बट देन पॉइंट इज इट इज लेट्स से समटाइम्स नॉट दैट स्पेसिफिक, और मैगजीन बहुत लेट आती हैं,
और मैगजीन जीएस ओरिएंटेड होती है, पॉल साइंस स्पेसिफिक तो अभी कोई अच्छी मैगजीन है भी नहीं मार्केट में। तो आई विल सिंपली से इंडियन एक्सप्रेस फॉलो, या जो भी न्यूज़पेपर फॉलो करना हो कर लो, एक कोई, जस्ट डू वन, ओके। And the moment mains ends, because till mains I'm also heavily occupied with some students and also with my courses, but after that I will also make it a point to ensure कि weekly PSIR updates आप लोग को मिले through my channel as well, okay? So that would also be हम कर सकते हैं अच्छे से, okay? Start कैसे करें? देखिए हर एक चीज स्टार्ट करने के लिए you have there is some inertia, okay? उस इनर्शिया को प्लीज तोड़िए और फिर शुरू करिए। देयर इज नो गुड डे, देयर इज नो बैड डे। आज ही लेट्स से वी हैव डन द सेशन, मेक इट अ पॉइंट यू डू दिस टुमारो। आप इसको कल कर लीजिए, ठीक है? आप इसी चीज को कल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कल से शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे करें? सिलेबस उठाइए, स्टार्ट विद एनी टॉपिक विच यू वांट टू स्टार्ट, ओके? एंड प्रेफरेबली वेस्टर्न थिंकर्स होने चाहिए या फिर आइडियोलॉजीज, तो वो हो जाएगा। स्टार्ट कैसे करें? और जो एक दो लेट मी सी सम क्वेश्चंस आल्सो, वन सेकंड। प्रताप, अच्छा हाँ चलो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा सोनिया ने। आप प्रताप भानु मेहता जी के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो आई विल से अभी के लिए उनको मत पढ़ियो, स्टॉप इट, ठीक है? पहली बात तो इट इज वेरी डिफिकल्ट इंग्लिश टू फॉलो, है ना? नहीं समझ में आता है, इनको छोड़ दो। आप सी राजा मोहन के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, और भी आर्टिकल पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग में अगेन पॉल साइंस में अच्छे नंबर लाना और पूरे आर्टिकल को समझ भी लेना, कभी कभार उसमें देयर इज नो कोरिलेशन। तो स्टार्टिंग में रीड, एंड बहुत ज्यादा एक और चीज है, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूं कि एडिटोरियल में आप 2-3 घंटे लगा रहे हो रोज, नहीं। मेरे हिसाब से इफ यू हैव अ डिसेंट रीडिंग स्पीड, इफ यू हैव अ डिसेंट कॉम्प्रिहेंशन, यू शुड स्पेंड लेस देन 45 मिनट्स पर डे, और ये कम होते होते 30 मिनट आ जाएगा। सिर्फ एडिटोरियल पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूं, 2 से 3 आर्टिकल पढ़ने हैं, और कितना टाइम लगेगा आप बताओ मुझको, ठीक है? इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं जाना है आपको, ठीक है? एक सेकंड रुक जाइए, बाकी लोग एक सेकंड रुक जाइए। अनेबल टू रिमेंबर हैवी वर्ड, देखो हैवी वर्ड शुरू में मत याद रखो, स्टार्टिंग में थिंक अबाउट अ स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आई टेल यू माय अप्रोच। I will first understand the broad issues of a thing. If I know the structure, then on every point I can add something, and then I can add one more layer, then one more layer. So finally, when I write, after a lot of reading, after building structure, then it will look very good to the examiner. दूसरी बात एक और चीज है, आंसर राइटिंग में फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट। समटाइम्स क्या होता है, आप सिर्फ बॉम्बास्टिक वर्ड्स डाल रहे हो, बट फ्लो नहीं है, अब्रप्ट है, यू डोंट नो हाउ टू राइट, इट इज अ मिक्स ऑफ रैंडमली असॉर्टेड पॉइंट्स, आपको उसमें मार्क्स बहुत कम मिलते हैं आंसर में। इवन इफ यू सी द कॉपीज ऑफ लेट्स से टीना डाबी मैम या और भी बहुत टॉपर्स हैं, ओके, एंड इन फैक्ट आई हैव आल्सो गॉट 162 मार्क्स इन लेट्स से पेपर 1, एंड ओवरऑल आई हैव हैड अ वेरी गुड स्कोर। इट इज नॉट एज इफ कि मैं बहुत मतलब मैं बहुत अलग अलग जगह से कोई बहुत टफ वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट फ्लो ज्यादा जरूरी है। फ्लो कब अच्छा होगा? इफ आई अंडरस्टैंड इट बेटर इन माई हेड। अदरवाइज आई हैव सीन सो मेनी पीपल कॉपीइंग कि हाँ उठा के इस स्कॉलर ने ये कहा, इस स्कॉलर ने ये कहा, इस स्कॉलर ने ये कहा, बट दे आर नॉट प्रेजेंटिंग प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स, सो दे विल नॉट गेट वेरी गुड मार्क्स। आंसर राइटिंग के लिए भी इसीलिए समटाइम्स सिंप्लिसिटी इज ऑल्सो रिवॉर्डेड। कीप इट सिंपल, हैव अ गुड फ्लो, and make sure you understand the demand of the question. Many times what will happen, let's say the question is on ASEAN's impact on regionalization of world politics, पर पूरा क्वेश्चन आपने आसियान पे लिख दिया, but the question was different, right? So you also have to understand what is the demand of the question. One second, right? Okay, does this make sense? अच्छा चलो ठीक है। What I'll do now, I'll just quickly go through some of the slides जहाँ पे आप लोगों ने और doubts पूछे हैं. Most of the things we have, let's say we have been covering. जो भी चीज pending होगी, again I'll let's say very soon I'll also have one more session. चलो और देखते हैं doubts आपने जो पूछे हैं. I think जिन लोग का if
कन्नड़ा। ओके, म्यूट ऑल। बाकी लोग भी प्लीज मेक श्योर यू आर म्यूटिंग योरसेल्फ, because otherwise it will simply kill time. I don't have any moderator with me as well. Sorry. Okay, so just a second. अब देखो, अब शुरू से देखते हैं हमने क्या क्या डाउट्स देखे हैं। आंसर राइटिंग पे चलो, आई जस्ट टेक 1 मिनट मोर ऑन आंसर राइटिंग। तो व्हेन आपने जब एक बार सिलेबस पढ़ रखा है, इफ यू एंड सिलेबस से ये मतलब नहीं कि पूरा सिलेबस खत्म करके आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। पॉइंट इज द मोमेंट यू आर डन विद द टॉपिक, उसका प्रीवियस क्वेश्चन देखो और कोशिश करो आंसर लिखने की। रिमेंबर, आंसर राइटिंग में मैंने क्या बोला आपको, फ्लो बनने के लिए आपको 50-100 आंसर्स बेकार लिखने पड़ेंगे। यू हैव टू राइट 100 to 50 बैड आंसर्स, देन फाइनली यू विल राइट अ गुड आंसर। ओके, वो होगा, दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। Then slowly steadily start with previous questions, but simply don't just write previous questions. बहुत बार मैंने देखा है लोग सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बट देन दैट मींस उनका 1B and almost entire 2A, because 2A has a lot of dynamic elements, they are never prepared for it. So why do you want to get in this trap? इससे बेटर है whatever topics you are reading about 1A, 1B, 2A में try to quiz yourself, or let's say try to attempt questions on those topics as well, है ना। अदरवाइज आप बस कोई चीज पढ़ रहे हो हल्की से अंडरस्टैंडिंगली, एक ही पार्ट कवर किया सिलेबस का, इट डज नॉट हेल्प। द सेम अप्रोच ऑल्सो डज नॉट हेल्प यू इन प्रीलिम्स ऑल्सो। इफ यू ओनली डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन प्रीलिम्स, कोई भी साल का पेपर देखो, इफ यू हैड ओनली डन 2022 या पुराने पेपर्स ऑफ प्रीलिम्स, क्या 2023 में वही क्वेश्चंस आए? नहीं आए। तो पॉइंट ये है कि PYQ helps, no doubt about it. I always say start PP, इससे करो PYQ, but after PYQ be updated with the current affairs and also have something which is contemporary, which you should also have in mind. Okay, so merely getting sense of satisfaction on, let's say you've done some previous questions, is not a great way to go about it. Okay, तो ये भी ध्यान रखना कि आप सिर्फ PYQs नहीं कर रहे हो। Okay, so that is one. To help you with current affairs and again all those kind of answer writings, I'll try to at least help you on those fronts, but that also means I need to be slightly more free with my time available. वो मैं तब करता हूँ उसके साथ। Okay, ठीक है, आप लोग बाकी लोग भी चलो, ठीक है, 1 more minute. So we were discussing this. I think now you are very much clear on answer writing, short notes. अब short notes कब बनाने हैं? Ideally the moment you're done with whatever topic is there, तब short notes बनाना शुरू करो। हो सकता है short notes आपके modify होते रहें, so make sure you have some space when you make some short notes. एक बार में final नहीं होगा, this might take some time. How to deal with international relations हमने देख लिया, how to be aware वो भी हमने देख लिया। और डाउट्स देखते हैं आप लोग के, 1 second. रिसोर्सेस के लिए आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली। स्ट्रैटेजी का दिस इज काइंड ऑफ अ मिक्स strategy video, but again I have to record a proper video where I only talk about strategy. Okay, connectivity with current affairs will only happen when you read your current affairs. इसमें तो रीड करना ही पड़ेगा, है ना। स्ट्रैटेजी के लिए एक और चीज है, इफ यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम ऑन 2024, बी क्लियर विद योर डेडलाइंस, है ना। if you are let's say not very confident in prelims, my simplest and the most sincerest advice will be prelims के लिए devote 4 to 5 months for pre. इससे कम दोगे तो it becomes even harder to clear prelims. If you are very sure of prelims, ठीक है, कुछ लोग 2 से 3 महीने की prep में निकाल लेते हैं, but these are usually the kind of people who have given one mains, or let's say who are more confident, है ना। If you are not one among them, तो try to जितना भी पॉल साइंस कर पाते हो दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक उतना कर लेना। वो लिख लेना इन डायरी की मैंने यहां तक कर लिया, मैंने पेपर 1 कंप्लीट कर लिया, पेपर 2 स्टार्ट करा था। तो प्री के बाद भी तो पढ़ना होगा ना। एट इज बहुत लोग सोचते हैं कि अरे सर हमने तो अभी ऑप्शनल आधा करा है, छोड़ देते हैं, बट पॉइंट इज प्री के बाद व्हेन यू क्लियर द प्री, यू आल्सो हैव 3 more months
उसमें भी एटलीस्ट 1 पेपर तो आराम से हो सकता है ना, बिकॉज यू विल बी इन, एंड इफ यू हैव टू चूज कि 1 करूं या 2 करूं, आई से अभी करना है तो पेपर 1 पूरा कंप्लीट कर लेना, ओके। एंड पेपर 2 के भी काफी पोर्शंस कैन बी डन आफ्टर प्रीलिम्स एज वेल, बट स्टिल इफ यू स्टार्ट नाउ एज वेल, अभी भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत आराम से आप एटलीस्ट 1.5 या मतलब ऑलमोस्ट लेट्स से 1 पेपर और आधा पेपर 1 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अप्रोच आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी एग्जॉस्टिवली, दैट इज डन। एग्जाम आपका 2026 में है तो आपके पास बहुत टाइम है, आपने ऑप्शन डिसाइड कर लिया है। रीड करंट अफेयर्स, रीड योर रिसोर्सेस, यू पीपल कैन ऑल्सो रीड बुक्स बिकॉज यू हैव टाइम टू मेक दोज मिस्टेक्स, ठीक है। लास्ट में आप नोट्स ही पढ़ोगे, आप बाकी चीजें करोगे, बट स्टिल आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू रीड बुक्स। बुक्स ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। इफ यू डोंट वांट टू रीड बुक्स, रीड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। ज्वाइन अ कोचिंग फॉर ऑप्शनल, नाउ दिस शुड बी योर ऑल्सो फॉर, इसमें बहुत फैक्टर्स हैं। डू यू हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर हैं तो सोच सकते हो, नहीं है तो स्टिल सेल्फ स्टडी के साथ, नोट्स के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ भी आप कर सकते हो विदाउट इवन ज्वाइनिंग और हैविंग द नीड टू ज्वाइन एन ऑप्शनल। अब यहाँ पे भी काफी बच्चे सांभवन के भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सांभवन वाले बच्चों को तो एटलीस्ट पॉल साइंस में तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आई एम देयर, ओके। पॉल साइंस का तो कोई भी डाउट डायरेक्टली मेरे से पूछ लेना, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ भी, एंड आई थिंक आप लोग ऑलरेडी बहुत पूछ भी रहे हो, मेनी ऑफ यू, एंड आई एम वेरी प्रॉम्प्ट इन माई रिप्लाईज एज वेल, तो वो मैं करता रहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज भी समझ गए, प्रोज हैं, अच्छा कॉन्स, चलो हाँ ये भी मेरी, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आई शुड टेल यू कॉन्स ऑफ पॉल साइंस, ठीक है। कॉन्स पॉल साइंस का एक कॉन है, सही में एक कॉन है। वो कॉन ये है कि पॉल साइंस में पहली बात सिलेबस इज बिग, 1, यस फायदा होता है, पॉल साइंस का फायदा सब में होता है, एसए में होता है, GS1 में होता है, बिकॉज हिस्ट्री एंड पार्ट्स ऑफ सोसाइटी हैव एन ओवरलैप। GS2 में बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। GS4 में फायदा क्यों होता है, थिंकर्स वहां पे भी हैं एथिक्स में। बट वन ऑफ द कॉन्स ऑफ पॉल साइंस इज दैट हर साल कंटेंट चेंज हो जाता है, 1B चेंजेस, 2 पेपर 2 ऑलमोस्ट पूरा चेंज हो जाता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कोविड हुआ तो हर थ्योरी को कोविड के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, मेनी ऑफ दीज थिंग्स विल चेंज, राइट। सो समटाइम्स व्हेन यू कंपेयर, बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारा तो ऑप्शनल एंथ्रो है, एक बार पढ़ा हमने बस, अब तो हमें वही पढ़ना है बार बार घिस पिट के जैसा करके। सो इफ दैट इज लेट्स से समबडीज ऑब्जेक्टिव, वो अच्छी बात है, हर एक ऑप्शनल के साथ फायदे हैं, हर एक ऑप्शनल के साथ नुकसान है, बट अल्टीमेटली टू रीच द 300 मार्क बैरियर आपको एफर्ट्स आपको ही मारने पड़ेंगे, ठीक है, विच गोज विदाउट सेइंग। हु शुड टेक पॉल साइंस ऑप्शनल, जिसका भी मन है, whosoever wants, ओके। सो कोई किसी पे बंदिश नहीं है, there is no forcing anybody, है ना। if you want you can take it. It is just like that, if you are getting, let's say, committed to a relationship or you have a goal in life, you have to see it through, last तक जाना है, लॉजिकल एंड तक जाना पड़ेगा, ओके। ये चीज तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और देखो मैंने सबके डाउट लिए इस स्लाइड में एक एक करके, आई जस्ट हाँ 1 सेकेंड, फिर से एक बार करना पड़ेगा, गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई थिंक इट शुड बी बेटर नाउ, राइट। अभी अब स्लाइड देख पा रहे हो, ओके। सो नाउ आई क्विकली टेक फ्यू ऑफ योर लेट्स से और डाउट्स, जिसने भी पूछे मैं सबके डाउट्स लिखे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, देखो क्या हो गया इसको, वन सेकेंड। अच्छा बाकी लोग जस्ट आई थिंक मेरे को मैसेज क्यों नहीं दिख रहे आपके, आपको स्लाइड दिख रही ना अभी, अच्छा ठीक है, थैंक यू हरीश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके। नाउ कहाँ गए सवाल, हाँ, इफ आई कवर GS2 हाउ मच पॉल साइंस विल आई कवर। देखो मेरे माय अप्रोच इज ऑपोजिट, आई विल से पॉल साइंस कवर करो अच्छे से, उससे GS2 काफी कवर हो जाता है, क्योंकि देखो GS2 में यू रीड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन यू रीड IR, दोनों मिला के एटलीस्ट
13 से 14 क्वेश्चन आएंगे GS2 में आउट ऑफ 250। बाकी 7 to 8 क्वेश्चंस विल बी अ मिक्स ऑफ गवर्नेंस एंड अ मिक्स ऑफ सोशल जस्टिस। फाइन। GS2 में जनरल लेवल पे यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स। फाइन। GS2 की जो IR है और जो पॉल साइंस की IR है, उसमें एनालिसिस के लेवल पे देयर इज अ डिफरेंस। ओके, सो द पॉइंट इज overall, if you have to develop an understanding, it is always better to cover your optional first. Optional के साथ फिर GS2 और अच्छा हो जाता है आपका। ठीक है। what strategy और basic, I think अब आप समझ गए हो how to complete the syllabus। और बहुत बार एक और मेरी एडवाइस ये है कि सिर्फ how to complete पे अटके मत जाओ, try to take steps। ठीक है। वेरी सून लेट्स से जैसी मेंस खत्म होगा, मैं 1-on-1 भी सबसे कॉल पे बात करने वाला हूँ। ठीक है। मैं आई विल ओपन द स्लॉट्स फॉर लेट्स से इफ यू वांट टू टॉक टू मी 1-on-1 10-15 मिनट्स सबके साथ बात करेंगे। बट उसमें होगा आपके साथ, मतलब बात का फायदा तब होगा जब आप खुद काम करना शुरू करो। फॉर पॉल साइंस, फॉर विद एवरी स्टूडेंट आई विल हैव 1 कॉल, एटलीस्ट 1 कॉल। ओके, तो अभी से जितने डाउट्स हैं अभी से लिखने शुरू कर दो। ठीक है। अभी तो ये ग्रुप सेशन है, उसके बाद भी अगर 1-on-1 भी होगा तो उसमें यू शुड हैव योर डाउट्स विद यू, राइट। तभी तो मजा आएगा कि आप मेरे से स्पेसिफिक सवाल पूछ पाओगे। नेक्स्ट सवाल, बुक लिस्ट मैंने बोला है कि मैं शेयर करूंगा, बट अगेन मोर देन बुक लिस्ट यू शुड फोकस अबाउट लेट्स से अदर एरियाज एज वेल। बुक लिस्ट मैं दे भी दूंगा, पर बुक लिस्ट आप भी जानते हो कितने लोग बुक लिस्ट पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, फाइन। After reading the NCERT, what should I do? Should I take advanced book? Yes, you can start with this. NCERT पढ़ ली है तो start करो लक्ष्मीकांत से। There are other NCERTs, let's say of international relations से related, global politics पे NCERT है, वो पढ़ सकते हो। ठीक है। But ideally you should start reading the components of a syllabus. Either देखो IGNOU का content बहुत simple है पढ़ने के लिए, and it is one of the best contents to start with. And उसके साथ parallelly previous question देखते रहो, start तो करो। ठीक है। Finding difficulty in understanding political theory of Paul Science 1A. How should I approach my thinkers? दोनों अलग सवाल हैं। One is how to approach my Western thinkers. ठीक है। तो now I think approach समझ में आई किसी को Western thinkers पे कैसे नोट्स बनाने हैं? पहले एक बार ये सारे नोट्स बना लो। Do this once. ठीक है। एक बार आपके नोट्स बन गए, उसके बाद आपको समझ में आएगा, और उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी समझ में आएगी। And you have to be patient for the thinkers part. Thinkers part will take time. And ideally after thinkers, complete ideology. और political theory में उसके बाद कुछ है नहीं। ठीक है। तो that will not take much of your time as well, है ना। तो start with this part. How should I approach? Make the, जिस तरह से मैंने आपको बताया, जो आगन होके देख ले। हाँ आगन है। हाँ, I think somebody was unmuted. Okay. So that is one thing you can take care of. Political theory पे उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो I can make a video on political theory as well. I don't have a problem in that. Okay. For 2025 and beyond people, you have a lot of time, but make sure you use your time wisely. ठीक है। Start कर लो 1B और 2 पेपर 2 मैंने बोल दिया, उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी आपको। ठीक है। तो स्टार्ट करो, एंड एटलीस्ट अभी फॉर टाइम बीइंग इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क मी, है ना। हाउ टू प्रिपेयर CSE विद कॉलेज, टाइम टेबल, मटेरियल, रिसोर्स। देखो टाइम टेबल, आई डोंट हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग टाइम टेबल। आई हैड ऑलरेडी टेकन अ क्लास ऑन टाइम मैनेजमेंट। मैं उसमें बोल चुका हूं आपसे, आपके पास कितना टाइम है। हो सकता है आपके पास यू हैव 20 आवर्स पर वीक, तो ट्राई टू एलोकेट इट ऑन योर प्रायोरिटीज। इफ योर प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट योर ऑप्शनल, सो गिव मैक्सिमम टाइम टू ऑप्शनल। किसी के पास 30 आवर्स पर वीक होंगे, कोई फुल टाइम एस्पिरेंट है 40 आवर्स, 50 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कैन स्टडी। ओके, सो टाइम टेबल यू शुड हैव अ हैबिट कि हाँ चलो मेरे को, आप लोग के लिए भी मैं बोलूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर ऑप्शनल, डू अ स्टैटिक टॉपिक, स्टार्ट करो उसको, और हर दिन एक करंट के टॉपिक भी पढ़ो। अब आप में से बहुत लोग हैं, इफ यू रीड, अगर आपको सही में कोई आर्टिकल अच्छा पढ़ा, आप मुझे उसका स्नैपशॉट भेज के टेक्स्ट करो कि सर दिस आई थिंक कैन बी यूज्ड इन दिस एरिया, दिस कैन बी यूज्ड इन दिस एरिया।
सो इट डिपेंड्स हाउ मच यू कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ मी अभी फॉर नाउ, है ना? तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हाँ, न्यूज़पेपर में ये चीज से ये रिलेटेड है, मे बी आई कैन डू इट फॉर सम वीडियोस बट आई मे नॉट बी एबल टू डू इट एवरी टाइम, है ना? सो माई थिंग इज ऑल्सो टू मेक यू सेल्फ इंडिपेंडेंट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे कि फिर आप रिसोर्स मटेरियल के पीछे ना पड़े रहो सिर्फ, है ना? बुक्स पे हम ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हेन टू स्टार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग एंड कंप्लीटिंग माय ऑप्शनल। अगर अगेन एज सून एज पॉसिबल मेरा पॉइंट रहता है। Again, I'll give you one just example. If you see the marks of Ishita Kishore madam or let's say Shruti Sharma ma'am, all of them have scored extremely high marks in your mains, in their mains. वो उनका सेकंड या थर्ड या जो भी एकदम नया अटेम्प्ट था, so they were scoring higher marks even more than the sixth attempt person. Can you tell me why this happened? ऐसा क्यों हुआ? Simply because they started early. तो डोंट थिंक कि अगर आप सोच रहे हो 26 में आपको स्टार्ट करना है, सो व्हाई कांट यू स्टार्ट राइट नाउ? गिव 10 आवर्स पर वीक, दैट्स ऑल। हर ऑल्टरनेट डे पे 2 घंटे पढ़ लो, बहुत है। स्लोली स्टडली बेस बन जाएगा। 2024 में थोड़ा ज्यादा कर लेना, 2025 में थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस हो जाना, बिकॉज योर क्वेश्चन ऑल्सो टेल्स मी दैट यू वांट टू लेट्स से डू मोर थिंग्स, राइट? अगर ऐसे पॉइंट है तो आप और भी चीजें देख सकते हो, राइट? अब आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। Anything for Pol Science that you want to ask apart from what I have discussed, वो मुझे पहले बताओ। And again, I will plan to have these ask me anything sessions more, so that आपके doubts मैं और अच्छे से लेता रहूं बार बार। Anybody who wants to raise their hand and ask their doubts for Pol Science, please make sure. संचित पूछो आप। संचित के बाद साक्षी कैन आस्क। हेलो। हाँ बोलो आप, बोलो और बिल्कुल सर ब्रीफ पूछिएगा अपना। हाँ सर, मेरा PSIR ऑप्शनल है बट हिंदी मीडियम से है। तो ठीक है। सर इसके लिए जैसे मेरे पास राजेश मिश्रा सर के नोट्स हैं, तो 2024 के लिए क्या उसी को केवल नोट्स को प्रिंटेड नोट्स फॉलो कर सकते हैं? नहीं राजेश देखो, मिश्रा नोट्स फॉलो कर लीजिए, पर जो ये करंट अफेयर्स पूरा आपको वैसा अपडेट करना पड़ेगा, है ना? इस सेशन में जैसे मैंने आपको अप्रोच बताई है वो देखिएगा, और अभी जिस दिन पॉल साइंस का पेपर होगा उस दिन मैं उस पेपर का एनालिसिस और डिस्कशन भी करूंगा, उसको भी देखिएगा सब लोग। यू शुड फॉलो 2023 मेंस बहुत अच्छे से, दैट विल गिव यू स्लाइटली एन आइडिया ऑफ हाउ टू प्रोसीड। ओके, तो जो भी आपके पास नोट्स हैं, सर के भी काफी फेमस नोट्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं उसको, और उसके बियॉन्ड पर करंट अफेयर्स आपको ऐड करना ही पड़ेगा। उसका कोई ये सर करंट अफेयर्स सर वैसे कोई एडवांस बुक तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके साथ? नहीं, आप नोट्स को अच्छे से करिए, वही है। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको अच्छी से करनी पड़ेगी, बाकी चीजें करनी पड़ेंगी, बट इट कैन बी मैनेज्ड, राइट? ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट आई थिंक साक्षी वांटेड टू आस्क। सर आवाज आ रही है? हाँ प्लीज बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो हम इसमें स्कॉलर कैसे कोट कर सकते हैं? किसी को कोट कर सकते हैं, सॉरी? सर इंटरनेशनल रिलेशन में स्कॉलर कैसे कोट करते हैं? कैसे कोट कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो इंटरनेशनल रिलेशन में जरूरी नहीं है कि हमेशा स्कॉलर कोट करे जाएं। पहली बात तो क्यों मैं बोलूं ऐसा, आप सबसे बड़े जो जर्नल्स हैं जैसे PR के वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल वेरी फेमस मैगजीन्स लाइक इकोनॉमिस्ट, वेरी फेमस सोर्सेज लाइक फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमैट एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बार बार बहुत ज्यादा स्कॉलर्स नहीं कोट करते हैं। हम लोग जानबूझ के स्कॉलर्स इसलिए कोट करते हैं जिससे कि फॉर एग्जांपल हम थोड़ी सी चीजें का अवेयरनेस बढ़ा पाए। तो आइडियली स्पीकिंग आप एकेडमिक स्कॉलर्स को कोट करिए, नंबर 1 प्रायोरिटी। जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो उसमें रियलिस्ट स्कॉलर जो है वो कोट कर सकते हैं आप, या लिबरल या मार्क्सिस्ट स्कॉलर, वो ज्यादा बेटर है। आपको किसी लेट्स से न्यू या पोस्ट कॉलोनियल वर्ड को इसको एनालाइज करना है, आप हो सकता है इमैनुअल वॉलरस्टीन की बात करो, राइट? पुटिंग अ मार्क्सिस्ट लेंस, ओके, कोर ऑफ पेरिफेरीज की वो बात करते हैं। ये पहली लाइन होनी चाहिए स्कॉलर की कि यूज एकेडमिक स्कॉलर्स। सेकंड क्या होना चाहिए?
you can use or write some, let's say कुछ ambassadors हैं, या let's say our foreign secretary or let's say external affairs minister, because their words have a lot of value. Similarly, let's say the defense secretary of US, if he or she speaks on India, China, Russia, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो, वो आप देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, रशिया के जो एक तरह से फॉरेन जो मिनिस्टर हैं, सर्जेव लैवरोव, ही हैज स्पोकन अगेंस्ट क्वाड. उन्होंने बोला क्वाड को एशियन नेटो. तो अब ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, आप इसको कोट कर सकते हो. ये सब कोट करने के बाद अगर लगता है कोई बच रहा है, तो फिर आप जो न्यूज़पेपर के स्कॉलर्स को कोट कर सकते हैं. न्यूज़पेपर के स्कॉलर को पढ़ना चाहिए उनकी एनालिसिस के लिए. उनके लाइंस आप उसको याद मत करो बहुत ज्यादा, स्टार्ट करो, और ये सब सीखने से आएगा कि लिबरल या बाय चांस लेट्स से कोई क्वेश्चन आ गया अबाउट लेट्स से WTO एनीथिंग, उसमें मैं रियलिस्ट को कैसे इंक्लूड कर रहा हूं. ओके, तो स्टार्ट विद एकेडमिक स्कॉलर्स, सेकंड शुड बी वेरी नोटेड डिग्नेटरीज, एंड थर्ड शुड बी योर एनालिस्ट्स. क्योंकि बताऊं एनालिस्ट के साथ क्या सीन है, एवरी पेपर हैज एन एनालिस्ट. तो इस तरह से 1000-2000 तो एनालिस्ट है दुनिया में. किस किस की ओपिनियन याद रखोगे? उसमें मेरे हिसाब से कुछ लोग जो बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे कि हर्ष वी पंत, ही राइट्स वेरी वेल, है ना, मे बी उनको फॉलो कर सकते हैं. सिमिलरली, एंड बाय द वे, इन सारी चीजों के लिए आप प्लेटोनिक का जो PSIR चैनल उसको फॉलो करो. मैं कुछ कुछ अच्छे बुक से, फॉर एग्जाम्पल फ्रांसिस फुकुयामा का नाम सुना है किसी ने यहाँ पे? यस सर. ठीक है, मेरे पास फ्रांसिस फुकुयामा की 4 बुकें हैं. आई एम अ गुड, लेट्स से मेरे को बुक पढ़ने का बहुत शौक है. तो पॉइंट इज, फ्रांसिस फुकुयामा की 1-2 लाइन बुक्स में आई थिंक आपके बहुत नोट्स में दी गई है. या लेट्स से नॉट जस्ट दैट, मैंने उसमें फ्रांसिस फुकुयामा, या आई थिंक मैंने 1-2 और चीजें, हैना अरेंट आपके थिंकर ही हैं, उनकी एक बुक की मैंने एक बहुत अच्छा कोटेशन टोटलिटेरियनिज्म पे शेयर करा है प्लेटोनिक पे, PSIR ग्रुप पे. तो इस तरह के कुछ नगेट्स मैं शेयर करता रहूंगा अपने साइड से, आपको पॉल साइंस आसान बनाने के लिए, है ना. तो वो आप फॉलो करते रहो. उसके बियॉन्ड भी इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच आई कैन डू, आई ट्राई टू डू दैट. और किसी को ये सपना मेरे बिल्कुल सही है, एंड ऑफ हिस्ट्री, इसमें भी सवाल बनता है एंड ऑफ हिस्ट्री पे, एंड एंड ऑफ आइडियोलॉजी पे भी एक सवाल बनता है. लेट मी सी, और लोगों ने हैंड रेज किया है. अंकुश, अब आप पूछ सकते हैं. हेलो, मेरे साइड से ऑडियो का प्रॉब्लम है. अंकुश, आप बोल नहीं पा रहे हैं. अक्षय, कैन यू स्पीक इन द मीनवाइल? Yes, sir. अच्छा, बोलो. ठीक है, आई थिंक अंकुश के साथ का कुछ ऑडियो प्रॉब्लम लग रहा है मुझे. So that आप how टाइप कर to रहे हो. हाँ, बोलो. approach that 1B part, like it's being along with that GS2, because it's not getting that much handy. ठीक है, तो देखो 1B के लिए, राइट, रुक जाओ. हाँ, ठीक है. 1B के लिए देखो, पहली बात तो ये कि इफ यू फॉलो योर न्यूज़पेपर्स, अभी के लिए टाइम आपके पास अच्छा है. देयर आर वेरी गुड लेट्स से आर्टिकल्स ऑन कास्ट बेस्ड इश्यूज, है ना, एथनिसिटी. फॉर एग्जांपल, अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट क्राइसिस की बात करें, है ना, आपके सिलेबस में देयर इज अ टॉपिक ऑन दिस एथनिक और लेट्स से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, राइट. तो पूरा का पूरा पॉल साइंस एंगल से भी सवाल बन सकता है इस साल. उसमें भी व्हाट आर द रेलेवेंट्स, लेट्स से आपने रजनी कोठारी जी की एनालिसिस, और भी बहुत फेमस स्कॉलर्स है, सबके सुने होंगे, है ना. फेडरलिज्म में भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. द पॉइंट इज, नंबर 1, स्कॉलरली लेवल पे थोड़ा सा सॉर्टेड रहो 1B में, एंड सप्लीमेंटेड विद अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स इन दैट सेक्शन. ओके, अदर देन दैट, द न्यू हैपनिंग्स, द न्यू एक्ट्स, थिंग्स व्हिच आर देयर, वो भी वो पूछ सकते हैं आपसे. सो दैट इज हाउ यू कैन बी अपडेटेड ऑन दिस फ्रंट. Is it enough to refer only yes or ma'am notes, or No, it is anything not else? enough. Not enough. For 1B, it is not enough. For 1A, it is fine. 1B And के लिए अभी लेट्स से काफी अपडेशंस हो गए हैं, ठीक है. तो थोड़ा सा अगर आप भी अपडेटेड रहोगे, एटलीस्ट एक बेस स्ट्रक्चर बना लो, बट आफ्टर दैट यू हैव टू बी अपडेटेड. Okay. एंड वी कैन टॉक इन मोर And डिटेल. आप अलग से भी मेरे को मैसेज करना. यू हैव बीन वेरी पार्टिसिपेटिव. जो भी लोग यहाँ पे ना, इफ यू फील योर डाउट हैज नॉट बीन आंसर्ड टू अ लॉट ऑफ डिटेल, यू कैन आस्क मी अगेन. We can also speak in 1-to-1 capacity as well. No issues.
Okay, okay. Raghavendra, you wanted to ask? Yes, sir. Sir, my question is basically regarding that I am able to form a link between the thinkers. The Right. thinkers part is good with me, ठीक है. but when I go and see the ideologies, Right. so that links goes missing over there, and Any example? so that is a big concern. Okay, okay. Can you give me an example of this? कोई example बता सकते हैं? Sir, for example, when I study, let's say, justice. Right. So in justice, there are various schools that we go through. Okay. So I'm not able to link those schools and also for the basic understanding of schools, I am not able to find a correct source that Schools what मतलब this school specifically जैसे say. क्या है? मतलब what are you looking for exactly? So Justice जैसे humanitarian में दिक्कत पोस्टमॉडर्निस्ट आ है, रही तो है? पोस्टमॉडर्निस्ट का बेस क्या है? नहीं चलो और उसके बाद और बताओ. पोस्ट मॉडर्न हो गया और वन. सर जैसे फिर फेमिनिस्ट है, तो फेमिनिस्ट का बेस क्या है? ठीक है. और उसके बाद आइडियोलॉजी उसके बाद थोड़ा सा वीक है मुझे लग रहा है आपका फिर थोड़ा सा, राइट? ये सर आइडियोलॉजीज बहुत वीक है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. आइडियोलॉजीज के लिए यार देखो, विच ईयर आर यू टारगेटिंग? सर नेक्स्ट ईयर ओनली. 2024. ठीक है. इफ टाइम परमिट्स, फेमिनिज्म एक बार एंड्रयू हेवुड से पढ़ लो. आइडियोलॉजीज बहुत, इट विल हार्डली टेक 2 or 3 hours. ठीक है. ठीक है सर. इट इज द बेस्ट बुक टू रीड अबाउट इन आइडियोलॉजीज. बहुत शॉर्ट कंसाइज बुक है, और जिसको आइडियोलॉजी सही में दिक्कत है, यू कैन रीड अबाउट इट, है ना, वो कर सकते हो. आई ऑल्सो प्लान टू हैव एटलीस्ट एक्सप्लेनर और लेक्चर्स ऑफ दीज थिंग्स ऑन माई चैनल एज वेल, in which I will go even beyond Haywood and through a lot of infographics, जो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा. That perhaps would be done after mains, because अभी mains तक काफी occupied हैं. But still ये सारे portions में spend some time, because this is the most rewarding section. Andrew Haywood एक बार try करो आप, ठीक है? उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो again we can have a session, and फिर देखो मैं क्या करूंगा, मेरे पास बहुत अच्छे I have a lot of slides wherein I can show you the evolution of these, let's say, ideologies. बहुत बार क्या होता है ना कि हमने रिस्ट्रिक्टिव और अलग अलग सोर्सेज पढ़े हैं, है ना, एंड विच इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम विद दिस ऑप्शनल की मेनी नोट्स ऑल्सो चीजें बहुत फ्रैगमेंटेड दी रहती हैं. इनफैक्ट व्हेन आई ऑल्सो यूज्ड टू स्टडी, मुझे भी बहुत इश्यूज थे कि यार ये कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं, ये कौन सा स्कूल है, लेफ्ट और राइट ही समझ नहीं आता था पहले तो. व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज कंजर्वेटिव, व्हाट इज एक्सट्रीम विंग, ये विंग वो विंग, है ना, बिकॉज वी आर नॉट टोल्ड, एंड समटाइम्स द नोट्स ऑल्सो कैनॉट केटर टू दोज थिंग्स, विच इज वाई मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल साइंस में सही में डायलेक्टिक्स होनी चाहिए. दैट आई टीच यू समथिंग, यू क्वेश्चन एंड आंसर, यू वी क्वेश्चन आंसर, वी क्वेश्चन आंसर, एंड देन वी फाइनली अराइव एट अवर ट्रुथ, राइट? ऑल्दो somebody like a postmodernist would say कि भाई ट्रुथ तो होती ही नहीं है. दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट. ऑल राइट. Anybody else who wants to ask? Sir, one more I want to. Sir, one more is that after Anybody reading can tell some me ideologies. अभी मैच स्टार्ट तो नहीं हो गया है? Is the rain gone away? I'm also doing a huge sacrifice being a big cricket fan. कोई बता सकता है अभी? No, I was just checking. अगर अभी आप सब स्कोर बता देते ना, मुझे लगता है कोई सेशन देख ही नहीं रहा है. चलो आप बता, प्लीज आस्क. हाँ सर, द थिंग इज सर, मैं आप मतलब PYQs लिखकर आपसे चेक करा सकता हूँ आइडियोलॉजी से. आइडियोलॉजीज क्या आप अभी इस समय देखो, मेंस तक के लिए थोड़ा सा मेरे पास लोड बहुत ज्यादा है. आई एम आल्सो कंप्लीटिंग वन और टू. हाँ, आफ्टर मेंस ओनली सर, आफ्टर मेंस ओनली. हाँ, आफ्टर मेंस आप भेज सकते हो, ठीक है. ठीक है सर, ओके. हम बात भी कर सकते हैं ना आफ्टर मेंस आल्सो, इफ देयर इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, वी कैन आल्सो डिस्कस कि हाँ ऐसे क्या कर सकते हैं, ठीक है. ठीक है सर. भैया माय मतलब आपका ये सारी चीजें विल बी टेकन केयर ऑफ, सो डोंट वरी. नेक्स्ट और कोई पूछना चाहता है? ऑल्दो इट हैज बीन अ वेरी 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 लॉन्ग सेशन, मुझे लग रहा था 7 बजे तक खत्म हो जाएगा. ऑलमोस्ट सेकंड इनिंग्स पे आ गए हैं. एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क? ओके, अंकुश पूछ लो अभी. अंकुश, मुझे लग रहा है आपकी आवाज आ नहीं रही. देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर वॉइस. इफ यू आर एबल टू हियर मी, ड्रॉप मी एन वॉइस नोट ऑन माय टेलीग्राम. मैं आपको इंडिविजुअल आपको भेज दूंगा. साक्षी, कोई और सवाल? यस सर. हाँ, प्लीज आस्क. सर, मैंने अभी PSIR को एज ऑप्शनल चूज किया नहीं है. ओके. बट थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, तो व्हाट कैन आई डू एज अ बिगिनर? The people who have been confused, I think I've already told you, है ना.
दैट योर कंफ्यूजन, आई थिंक आपने सेशन स्टार्ट से देखा है क्या? Yes, sir. हाँ, तो आप देखो जिसमें भी कंफ्यूज हो आप, है ना, उसमें थिंक अबाउट द पॉइंट्स, पहले तो लिख लो कौन कौन से ऑप्शन में चूज करना है, 2 3 4 5 10 15, ठीक है, नैरो डाउन करते रहो, लास्ट में 2 में आ जाओगे आप, है ना। द मोमेंट देयर इज अ क्लैश ऑफ 2, फिर टाइम लगाओ थोड़ा सा। एंड बाय द वे, व्हाट इज योर टारगेट ईयर? Sir, 2026. अरे बहुत दूर है, अभी बहुत टाइम आपके पास, टेक सम टाइम, प्रीवियस क्वेश्चंस देखो, सिलेबस देखो, एनालाइज करो, उसके बाद टेक अ लेट्स से स्टैंड ऑन इट। ओके, यू कैन डिस्कस विद मी लेटर एज वेल, बट स्टिल अगर जो लोग 2024 वाले हैं वो मुझसे अगर पूछना चाहे वो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल रैप अप द सेशन। ओके साक्षी, यू कैन इंडिविजुअली आल्सो सेंड मी योर डाउट Okay, sir. Thank you, sir. आफ्टर डूइंग दिस होमवर्क। हाँ, और कोई है ऐसा भी 2024 वाला जो पॉल साइंस की कोई चीज मुझसे पूछना चाह रहा है यहाँ पे? ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस अदर देन दिस? आई थिंक, और या फिर चलो कोई नहीं। डिड यू फाइंड द सेशन यूजफुल? some feedback, some honest feedback from my side, please. Okay, Anant, don't worry, ये rumors कुछ नहीं होने वाले अभी. If there is something of this sort, you will get to know. Optional अभी कुछ हट नहीं रहा है, till the time optional has not been scribed off. It will be going on. CSAT पे I will take sessions, no, don't worry about it. And Paul Science में ये बहुत introductory level का session है. अभी आपको अगर ये अच्छा लगा है तो actual Paul Science, अगर let's say whenever I discuss any topic, that will be 10 times better. Right now, I'm just barely scratching the surface. ठीक है, but again, I would encourage everybody, मेरे से कोई भी अगर चीज सीखनी हो, कुछ हो, be very good in your note taking. Note taking पे आप जितनी मेहनत चाहो, जितने मेरे efforts चाहो, मैं कर सकता हूँ आपके साथ efforts. Notes इतने अच्छे बनाओ ना आप कि finally, if your notes are good, that is going to reflect in your answers. Okay. And again, if you are stuck in कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, again, Paul Science पे ये ध्यान रखो, there is no dumb question. Okay, somebody asked, और बहुत relevant doubt पूछा अभी, I think it was Raghavendra, if I'm not wrong, कि आइडियोलॉजी सही में, मैं जानता हूँ बहुत लोग को इशू होता है आइडियोलॉजीज में कि फेमिनिज्म आया तो कहाँ से आया, क्या इनका बेस है, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ स्टेट, फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और फेमिनिस्ट को कौन क्रिटिसाइज करता है ना। तो ये जितने डाउट्स हैं अपने साथ, ट्राई टू हैव दोस डाउट्स विद यू। ओके, एंड अगेन व्हेनेवर यू फाइंड मी फ्री, पकड़ के सारे डाउट्स पूछ डालो। Smruti, you want to ask something, and then I'll end the session now. अरे हमने खुदाम तो माची मुसेरन गरम लगी रही है ना, Hello. गन्ने बिर रही है ना, सुड़ी बात है ये तो। Smruti, you want to ask if you can? Otherwise, Yes, I'll sir. just end the session now. हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर मेरा पूछना ये है कि मैं एक बार ना वो प्लाटो के ऊपर मैं वीडियो सुन रही थी, लेकिन वहीं हाँ, पे जो लिखा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओके, सुना, कुछ समझ में नहीं आया क्या था उसका, जस्टिस क्या था, ठीक मुझे है। कुछ समझ, मैं क्या करूं जो मुझे समझ में आ जाएगा। प्लेटो समझने के लिए इग्नू या कोई भी एक अच्छा, कोई भी आपकी जो भी लैंग्वेज में आप हिंदी में देख रहे थे, इंग्लिश में देख रहे थे, वट एवर लैंग्वेज, फॉलो दैट सोर्स, उस सोर्स को फॉलो कर लीजिए। सर ये मतलब मैं शुभ्रा मैम का नोट्स या इग्नो का नोट्स मैं कुछ यूज नहीं की, तो मुझे आप देख कुछ सकते समझ। हो, एक बार स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो। आपका मीडियम कौन सा, इंग्लिश है हिंदी है? इंग्लिश है। एक बार स्टार्ट करो पढ़ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो भी आप मुझे बता सकते हो, बट पहले स्टार्ट सर, करो, है ना। एकदम डरने की इतनी कोई बात नहीं है। वीडियोस में बहुत बार क्या होता है ना, वीडियोस में एक्चुअली प्लेटो को कवर करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है, जी क्योंकि सर। स्टार्ट एक तरह से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वहां से होगा, उस उनके आइडियाज का बैकग्राउंड सब कुछ समझाना पड़ता है, तो इट टेक्स अ टाइम। मे बी आपने जहां वीडियो देखा हो सकता है उनके पास सारे मैम जिन्होंने भी पढ़ाया हो, टाइम कम हो, शायद बैकग्राउंड उतना नहीं दिया हो, या चीजें समझ में नहीं आई, तो इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लो, एक बार नोट्स, फिर शायद वो जी, वीडियो भी समझ में आ जाए, और हो सकता है नोट्स ही समझ में आ जाए आपको। कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि क्या कैसे ये सब कुछ मैं कनेक्ट करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या था, क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं में नहीं, तो नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो है, वो इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। स्टार्टिंग में चीजें मुश्किल लगती हैं, पर उसके बाद चीजें आसान लगती हैं। आया। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। नागमणि, आई थिंक you know how to write. Acha, thank you so much. Okay, fine.
By the way, we will have more sessions on pol science now, preferably every week, although इस week और next week नहीं हो पाएगा क्योंकि mains चल रहा है. I will have to do some analysis of mains as well. ठीक है. गुरविंदर, I think that is not enough जो आपने लिखा हुआ है, और भी चीजें हैं, मैं आपको बता दूंगा उसके बाद. But other than that, I think I really liked interacting with all of you. Thank you so much. मैं पहली बार एक तरह से इस सेशन कर रहा हूँ, at least after a long time, directly with you. Many of you joined. I'm so happy to know that. Okay. Again, if there is any doubt, pol science या उसके बाद भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. I'll always be accessible. Thank you so much. Have a great day. मिलते हैं कल बहुत जल्दी हम लोग. We have a class also tomorrow. We'll meet tomorrow then. Okay. 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 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद.